so that I can have an idea. So that starts from it starts at Indore, Bangalore, Ghaziabad. Okay, Gujarat, Mumbai, Bikaner, Bhubaneswar, Odisha. Wow. Indore, Surat. Now this V stands for I don't know. Okay, Athar from Pune, Bhavani Mandi, Rajasthan, Sarthak, Kerala, Mohammad Sabit, Delhi, Mumbai, Shimla, Mirzapur, Devanshu. Which Mirzapur? The UP wala Kalin Bhaiya wala Mirzapur. Jagdalpur, Indore, Mumbai, Kashmir, Zahur. So happy to see you. राजकोट, फरुखाबाद. क्या बात है. जहां तक मुझे ध्यान है महादेवी वर्मा जो हमारी सुप्रसिद्ध लेखिका थी वो फरुखाबाद से थी, इफ आई एम Absolutely. नॉट रॉन्ग. उज्जैन, इंदौर, नवी मुंबई, रुखसार. वेरी गुड, वेलकम. तनिष्क, हिमेश. वाओ, गट पीपल फ्लोइंग इन. ओके, ग्रेट. सो I I think okay, from Katihar, Nishant from Bihar, Katihar. So I think Parth, we have covered all the length and breadth right from Kashmir to Absolutely. Kerala and from Odisha to Rajasthan. Absolutely. So I'm so happy, and I think we can get going, Parth. Absolutely, sir. We are Tech all set. too? All Absolutely. We are all set. okay, great. So before we formally start this session, let me have the privilege to introduce Parth. And I don't know how much happy I am that Parth has agreed to come on this session. Arey nahi, sir. Just Let me very. introduce Parth for all of you. Thank you so Parth much. has been has completed his chartered accountancy, and Parth is the founder of the Valuation School. He is a chartered accountant. He's also a NYU Stern alumnus. He has got a powerful presence on LinkedIn with 220,000 plus followers. He teaches valuation and financial modeling. And as you all say that the founder tag, he has earned that founder tag with himself. He has been a part of Yes Bank, Protivity, and PwC. So, on behalf of all the fresh started accountants and from length and breadth of the country, I welcome Parth. And I'm so proud to say this line that at one point of time in this Parth's journey, I was lucky enough to do a small contribution also. No, sir. आप टीचर रहे सर. यू आर अ मेंटोर एंड यू I आर ऑलवेज देयर फॉर I'm अस. just a medium. मैं हमेशा ये मानता हूँ. I was just a medium, and I was lucky थैंक यू to सो have मच. people like you. थैंक यू सो मच So सर. welcome, and trust me, you gave time to me and you were so easily accessible to me. It's a privilege to me to have that. ओके. So getting on to work now. Uh, Investment banking path and equity research are two such terminologies. If you ask me, if all these fresh started accountants, when they become CAs, that's the first thing. I want to get into investment banking. I want to get into equity research. These are very celebrated and coveted terms, if you ask me. Now, what happens is एब्सोल्युटली. the moment this comes to the reality check, how to get into it, how to crack this, what are the skill sets which are needed. And we have been hunting for this. But the point is, we were never not getting the right guidance. And then it struck to me that I should reach out to you. And then you happily agreed. I once again thank थैंक you यू सो for मच. giving your time. And without थैंक यू. doing much ado, let me tell you that we are going to have three sessions. Parth is going to inaugurate this session. That will be on equity research and IB. Then you will have one session with Vaishali on 1st August, that is the after tomorrow. She will also be telling you she is also from IIM. She has done consulting. She was a part of Sugar Cosmetics in founder's office. She was working along with Vinita Singh. Now she is working in Marico. So she will also come and share with you that how you can plan your journey after chartered accountancy. And then once at Parth tells you how to get into investment banking, there is a student of mine once again, Neha Singh, who is working in Peak XV Ventures, which is earlier known as Sequoia. Sequoia Capital.
So she will tell you how it is on the deal side and the other side, both sides, how actually things work on a day-to-day basis. So it will be a series of 3 sessions, and I deliberately kept it in such a way that aapka sab, you have done your choices in campus, the MDP is through, all the rankers, their MDP is through. Now they have some time to understand this and plan their careers. So that was the purpose which we have been doing. On behalf of Degree to Placements, I warmly welcome Parth. Parth, it's over to Thank you, you sir. now. And just to set the context, all the candidates, please keep your self on mute. As and when Parth feels comfortable, he will tell that questions can be asked. Then you can unmute yourself, or as he may feel comfortable. Parth, will you like to take them through first, or you will take the questions in? I'll take the session and then I would like to take the questions. मुझे लगता है questions बहुत ज़्यादा अगर personally आप उसको बहुत पर्सनली केटर मत कीजिएगा क्वेश्चन को लिखते समय. आप क्वेश्चन में ऐसा एलिमेंट मत डालिएगा जो बहुत पर्सनलाइज्ड हो आपको लेके, ताकि दूसरे लोग फिर होल्ड पे चले जाएं एंड दे वर नॉट एबल टू मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट, राइट? सो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो मेरे को बताओ, बट ऐसा मत बताना कि सर मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, मेरे साथ ये, अब मैं क्या करूं, राइट? तो वो क्या होगा ना, उसमें वो सिर्फ मैं और आप ही बात कर पाएंगे. आई डोंट वांट दैट. आई वांट कि जितना वैल्यू हमें फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में मिले उतना ही वैल्यू सभी लोगों को सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में भी मिले. So I ठीक think है? we keep it that way, Parth. You can take your श्योर. session first, and then we can open up the house for questions. Perfect, sir. We can do that. We can And always do before we that. go ahead, there is a fan of yours. I have been following Parth Sir's weekly Bazaar Talks and Bazaar Bites since a very long time. Thank you so much, Tanishq. Thanks a lot. Okay. Over to you, Thank Parth. you. All Sure. yours. Thank you. हाँ जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? सभी लोग बताइए. यू हैव टू बी वेरी आपको चैट पे थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा अपना हाथ, है ना? ऐसे काम चलेगा नहीं. कितने लोग रैंक मार के बैठे हैं क्लास में? कितने लोगों जी जो रैंक मार के बैठे हो, जल्दी से बताओ फटाफट. हाउ मेनी ऑफ यू आर एआई, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट इन एआईआर? ओके, वैसा कुछ है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर एआईआर. वेरी गुड, वेरी Syami, गुड. क्या रैंक है वो भी बता दो. Syami व्हाट AIR. इज योर रैंक? व्हाट आर योर रैंक्स? यार तो प्राउड की बात है ब्रो. लाइफ के आखिरी क्षण तक एआईआर बोलोगे आप. नो Rishabh रैंक. AIR. 37, 29. ओके, 51. वेरी गुड. नो एआईआर. वेरी गुड. यार एक बात बताऊं, मुश्किल से पास हुए हैं. वैसी सबकी हालत वैसी है ब्रो, सबकी हालत वैसी है. देखो, द आइडिया इज नॉट टू डिमीन जिन लोगों की रैंक आई है. आइडिया जरा सा भी वो नहीं है कि आपको नीचा दिखाना है. डेफिनेटली ब्रो, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तभी आप इंडिया में टॉप 0.1% कैंडिडेट्स में हो जिन लोगों ने सी अटेम्प्ट किया था, राइट? एंड डेफिनेटली यू डिजर्व अ रेस फॉर दैट. बट यार एक बात सही में बताओ ना, तुमको भी थोड़ा ना पता था कि रैंक आ जाएगी, तुक्के में ही तो आई है. समझ रहे हो आप मेरी बात? कौन है, कौन माइका लाल है पूरे हिंदुस्तान में जो बोलता है कि मेरे को पहले से पता था कि मेरी रैंक आएगी सीए एग्जाम्स में? आई डोंट थिंक सो. सी आई क्लियर्ड माई सीए एग्जामिनेशन 10 years ago. 2016 में पास हुआ था मैं, एंड नवंबर 15 के अटेम्प्ट में पास हुआ था मैं. ठीक है, बट मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि आज भी कितना भी आप छोटा बड़ा कर दो सिलेबस, पहले 8 सब्जेक्ट होते थे, अब 6 सब्जेक्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि मेरी पहले रैंक आ रही थी. 100% श्योर था मैं. एवरीवन वाज. मुझे ऑनेस्टली बताना, क्या आप लोगों के लिए सरप्राइज था रैंक आना? जिन लोगों की रैंक आई है, खुल के बताओ. तैयारी अच्छी थी बट ऐसा नहीं पता था कि रैंक क्या आ जाएगी, बिकॉज नो बडी नोज दैट ब्रो. नाउ अंडरस्टैंड. मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि इररिस्पेक्टिव, स्पेशली जिन लोगों की रैंक्स नहीं है, क्या हमने लाइफ में सब कुछ मिस कर दिया? क्या कुछ भी नहीं है ब्रो. इट इज जस्ट अ स्टार्ट. समझना, आप कभी गूगल सर्च करके देखना, सीए रैंकर फायर्ड, है ना, सीए रैंकर फ्रेशर्ड फायर्ड बाय कॉर्पोरेट्स, आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे. 2-3 केस तो मैं पर्सनली जानता हूं. AIR 1 को ही निकाल दिया कि यार यू आर नॉट गुड इनफ. प्लीज अंडरस्टैंड. दूसरी चीज, मेरे लिए आप सब लोग सेम हो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर. मेरे सामने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है. समझना, कोई फर्क नहीं पड़ता रैंक है या नहीं है. मेरी रैंक नहीं थी. आई क्लियर्ड, समझना, आई क्लियर्ड माई सीए इन 6th अटेम्प्ट.
छठे अटेम्प्ट, सुन रहे हो ना आप मेरे को बैठ के, रैंक आने के बाद कोई फर्क पड़ता है लाइफ में लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आ जाएगी इधर उधर से, लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं होता। रोड मैप टू कोर फाइनेंस आफ्टर सीए, ये जो हमने सेशन रखा है ना, इसका ऑब्जेक्टिव आपके माइंडसेट के ऊपर अटैक करना है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, ये सब है ना ओवरसोल्ड चीजें। सर व्हाट डू मीन बाय ओवरसोल्ड? ये ऐसा गरम केक है जिसको सालों से कोचिंग वाले काटे जा रहे हैं खटाखट, और सभी लोग एक्साइटेड है। क्या होता है ना, जैसे ही मैं नाम सुनता हूं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मेरे को ध्यान आता है ऋतिक रोशन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मुशी मुशी, राइट? कि सर वो जिंदगी चाहिए यार, जिंदगी होना चाहिए ना तो लियोनार्डो डी कैप्रियो जैसी होना चाहिए जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में। हम हमारी टर्म्स पे, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बोलना चाह रहा हूं कि क्या फैंटेसाइज करा गया है क्या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को? प्लीज। तो एक तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है जिसके ऊपर मैं 100% बात करूंगा आपके साथ, बट पता है एक ऐसी चीज है जो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी से बात कर रहा हूं इस टाइम पर, ठीक है, कि वो अपने हाथ से निकल के जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपके हाथ से एमबीए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खींच के निकाल के ले गया, है ना? क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते थे उनमें सोफिस्टिकेशन की कमी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप था। मैं आज से 25 साल 30 साल पुरानी बात कर रहा हूं जब एमबीए राइज हुआ, है ना? तो एक गैप आपने क्रिएट कर दिया। आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हो बट मेरे से टेबल पे बैठ के काम करा लो, मैं ऑडिट कर दूंगा, टैक्स का काम कर दूंगा, लिटिगेशन का काम कर दूंगा, उसमें अच्छा काम कर दूंगा। बट जहां आपने मेरे को किसी बिलियनर सीईओ के सामने बिठा दिया, बाबा मैं क्या बोलूंगा सर, मैं कैसे बात करूंगा? ये इनहेरेंट प्रॉब्लम थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को एमबीए वाले खींच के लेके चले गए। आज अगर तेरे पास दो रोल्स हैं, क्योंकि बाकी रोल्स के लिए देर आर एक्सपर्ट्स हु आर इनवाइटेड, तो अगर आपके पास दो रोल्स हैं, एक है आपके पास आईबी और एक है आपके पास इक्विटी रिसर्च, मुझे आप एक बात बताओ, आपके हिसाब से इंटेंस कंपटीशन एमबीए से कहां पर फेस होगा आपको? आईबी में होगा कि इक्विटी रिसर्च में होगा? सोच के बताना। आईबी में होगा ब्रो। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है, समझना प्लीज। देखो यार, आपको अगर, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेशर या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेटर्निटी, समझना, या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलता हूं, अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज भी और अपना इंस्टीट्यूट भी, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग है ना यार ब्रो, सी वी आर डूइंग एवरीथिंग गुड, है ना, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई इंस्टीट्यूट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई प्रोफेशन, बट मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं है ना हम सब लोग मिलके कलेक्टिवली कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, जिसके कारण है ना हम आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करिकुलम को वो प्रोजेक्शन नहीं दे पाए फाइनेंस में जो वो डिजर्व करता था। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, कितने लोग अभी सीएफए करेंगे आगे जाके? कितने लोग आपने सीए में 2 बार पढ़ा क्या फाइनेंस? 2 बार पढ़ा ना, एक बार इंटर में पढ़ा होगा और एक बार एएफएम पढ़ा। मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूं आपने सीएफए के तीनों लेवल पढ़े हुए हैं। आप मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सीएफए के तीनों लेवल में आपको इंट्रोडक्शन होता रहेगा। आपने बेटा फॉरेक्स मैनेजमेंट करके चैप्टर बचा है, अभी फाइनेंस में नहीं है, बचा हुआ है, बचा हुआ है फाइनेंस में चैप्टर जहां आर्बिट्राज करते हैं इधर उधर से, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, दिस दैट, राइट? आप सीएफए के तीनों लेवल के अंदर जाके देख लीजिएगा, आपने जिस स्तर पे उसको पढ़ा है वहां पर सीएफए के अंदर भी नहीं था। वो जाके 4 में से 3 में से एक ऑप्शन टिक करके आया, तू पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आया तो तेरे को नंबर मिला। प्लीज अंडरस्टैंड, तो तूने मेहनत ज्यादा अच्छे से करी है, बट वी, कहीं ना कुछ मिस्टेक तो हो रही है ब्रो। क्या इस चीज को अग्री करते हो? आपकी समझ लॉज एंड रेगुलेशन पे उनसे बहुत ऊंची है, आपकी समझ अकाउंटिंग पे उनसे बहुत ऊंची है। क्या आप सब लोग कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट टैली करने के बाद ही यहां तक पहुंचे हो क्या? वही तो सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है ना, 16 नंबर का क्वेश्चन। जब तक वो चीज ना हो तब तक तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही नहीं सकता। कोई है जो सीए बन गया बिना कंसोलिडेशन बैलेंस शीट टैली करे? एक्स ने वाई को खरीदा, जेड, पॉसिबल ही नहीं है। समझना, किस्मत खराब रहेगी तो 3 सब्सिडरी का कंसोलिडेशन आ जाएगा। बड़ा एग्जाम्पल, 4 पेज का तो क्वेश्चन ही चल रहा है, वो भी होते हैं कई बार। तो आप लॉ में इतने अच्छे हो, ठीक है, पार्थ,
आप रेगुलेशन अंडरस्टैंडिंग में इतने अच्छे हो, आप जनरल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में इतने अच्छे हो, आपको कॉस्टिंग उससे बेहतर समझ में आती है, आपको टैक्सेशन उससे बेहतर समझ में आता है, आपको अकाउंटिंग उससे बेहतर समझ में आती है। मैम आपको ऐसा, अकाउंटिंग में तो आप गुरु हो ब्रो, उसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर पार्थ, सॉरी टू एमडीपी के थ्रू, इंटरप्ट यू। अपनी पार्थ, एमडीपी के थ्रू हमारी, guys, you have to mute yourself here. I feel that a lot of you guys are not muted enough. I'm not able to hear anything. Parth, I अच्छा, am sorry to okay, interrupt sorry. you. I was just trying to say, sorry to interrupt you. That I was just trying to say there are certain people from logged in from South and Kerala. So they were saying that if we can have some English Hindi mix, that will Got help it. them. I will do that. I'll do that. Okay. Yeah, Yes. sure. Please carry on. Now, the idea is that we being a chartered accountant, right? We are very good in accounting. We are very good in law. We are very good in this. We are very good in that, right? देन व्हाट इज स्टॉपिंग अस? देयर इज सम प्रॉब्लम। क्या आप लोग इस चीज को एक्नॉलेज करने को तैयार हो दैट यस सर द प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू तो है, देयर इज समथिंग which collectively we are not doing right as a student, as a teachers, as a mentor, as an institute, as a fraternity, we are not doing it right. चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आज भी स्ट्रगल करते हैं कि उनको फाइनेंस के काम मिल जाए। आई एम नॉट किडिंग, है ना, कि वैल्यूएशन का कोई प्रोफाइल मिल जाए या कोई कॉर्पोरेट फाइनेंस का जॉब मिल जाए, छोटे एसएमई आईपीओ का अंडर राइटिंग करने का मौका मिल जाए, बुक बिल्डिंग करने का मौका मिल जाए। वेरी रेयर। क्या इंडिया की टॉप 1% ही मिड टीयर फर्म्स है जो ये सब काम कर पा रही हैं? तो ये वहां पर भी इतना एक्सक्लूसिव है। प्रॉब्लम है, इफ यू आर रेडी टू एक्नॉलेज दैट यस सर देयर इज अ प्रॉब्लम, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट। आई हैव टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है यार कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कोर फाइनेंस में अपना करियर नहीं बना पाते हैं? आप सोच रहे हो कि आपको फाइनेंस में करियर बनाना है, सब सोच रहे हैं। आप है ना, आज किसी भी सीए इंटर के बच्चे से पूछ लो जो इंटर्नशिप करने कर रहा है या फाइनल में जस्ट आया ही है, उससे पूछ लो, बोलेगा मेरे को फाइनेंस में करियर बनाना है, मेजॉरिटी ऑफ देम। कोई नहीं बोलता मेरे को जीएसटी, जीएसटी की रिटर्न भरने का सपना देखा था क्या 60 साल की उम्र तक? हर महीने 1500 लोगों को फोन लगाऊंगा, बोलूंगा भैया डेटा दे दे, डेटा दे दे, जीएसटी आर 1 भरना है, 2 भी भरना है। क्या बात कर रहे हो फालतू? नो बडी लाइक दैट ब्रो, है ना? बट क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन सर वाई मोस्ट ऑफ अस हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ देयर ड्रीम रोल? आपने जो भी सपना देखा है, आपको असेट मैनेजर बनना है, पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, वेल्थ मैनेजर बनना है, मर्जर्स एक्विजिशन स्पेशलिस्ट बनना है, वैल्यूएशन एनालिस्ट बनना है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, कुछ भी बनना है, समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको 99% ऑफ यू, इवन इफ यू आर अ रैंकर, रैंकर होना कोई फाइनेंस में रोल मिलने की गारंटी नहीं है भाई। रैंकर्स बहुत बड़े परचम गाड़ रहे हैं इंटरनल ऑडिट्स के अंदर भी, है ना? मैंने काम करा है रैंकर्स के साथ, समझना प्लीज। तो मेजॉरिटी ऑफ हैज टू कॉम्प्रोमाइज, ये तो श्योर है, राइट? अब प्रॉब्लम ये आती है, क्या आपको कन्वेंशनल जॉब रोल्स चाहिए? क्या आर यू रेडी फॉर दैट? समझना, टैक्स और ऑडिट बुरे नहीं है, लोगों ने फॉर्च्यून बना लिया उसके अंदर। बिग फोर में लगो, स्टैट्यूटरी ऑडिट में शिद्दत से काम करो, 10 साल 15 साल में पार्टनर, गाड़ी वाड़ी सब मिल जाएगी, करोड़ रुपए की सैलरी, प्रॉफिट में से शेयर आ रहा है, लाइफ सॉर्टेड है। कमर में थोड़ा दिक्कत होने लग जाती है बस थोड़े टाइम के बाद। जो बिग फोर में काम कर रहे हैं उनको पता है, पट्टा बांध के घूमते हैं सब यहाँ पर मैनेजर है नवाब लोग, है ना? वर्किंग आवर्स थोड़े लंबे होते हैं, पैसा तो वहां भी है, करेक्ट? आप टैक्सेशन में देखो, हमारे इंदौर में ही लाखों रुपया चार्ज कर देते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रिब्यूनल अपील में अपियरिंग का। देर आर गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर डूइंग दैट। बट क्या तेरे को जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सर ये तीनों क्वेश्चन आपने पूछ लिए, मेरे को ये चीज बताओ, आप फालतू का ज्ञान मत दो, मेरे को ये चीज बताओ कि इसका रीजन क्या है, वाई ऑल दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, why majority of the people are not able to mark their careers in core finance role, why most of us have to compromise with our dream roles, and do you want a job, conventional job role? Absolutely not. then पता है क्या है, दो चीज का डिफरेंशिएशन है बस, एक है रेज्यूम और एक है प्रोफाइल। दोनों बहुत अलग अलग हैं। ये कागज का टुकड़ा रेज्यूम है क्या? ये जा रहा है ना, आप अगर एक सिंपल रेज्यूम देख रहे हो ना, एक A4 साइज का पेपर, दैट इज रेज्यूम।
प्रोफाइल क्या तू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करेगा, बिल्ड करेगा। रेज्यूम को तू क्या कितना भी फैंसी बना सकता है, कितना भी कैची बना सकता है, झूठ लिख दे उसमें। समझना, जो काम तूने नहीं करा है, तू वो सब डाल के इंटरव्यू का कॉल तो लेके आ जाएगा। प्लीज, बोलने का मतलब ये करना नहीं है ऐसा, है ना, एथिकली गलत है, कोड ऑफ एथिक्स पढ़े हो सब। द आइडिया इज कि रेज्यूम से मेरे को इंटरव्यू का कॉल आएगा, मेरे को जो नौकरी मिलेगी, द जॉब आई विल गेट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल आई कैरी। सर, क्या आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो रेज्यूम और प्रोफाइल में? बिल्कुल कर सकता हूं। 1 मिनट दो आप मुझे, मैं करके बताता हूं, ठीक है? एंड लेट मी नो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है जी? क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? सब लोगों को? ठीक है। यस सर। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं। सिर्फ ये एक आर्टिकल असिस्टेंट है, ही इज जस्ट अ, मतलब आपने भी कोई फाइनेंस फाइनल का रिजल्ट मार के कुछ कर थोड़ा ना, ऐसा थोड़ा ना कि डिग्री जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ब्रह्मा जी उतरे और सारा ज्ञान दे के चले गए। आप भी वहीं हो जहाँ 6 महीने पहले थे, कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ डिग्री चेंज हुई है लाइफ में ना, एक अथॉरिटी आ गई अपने पास। नाउ अंडरस्टैंड, लड़का एक नॉर्मल सीए स्टूडेंट है, मेरे को बोलता है ग्लैड टू कनेक्ट, थैंक्स फॉर एडिंग मी टू योर नेटवर्क। मैं, लेट्स माय प्लेजर। तो इज लाइक, कैन यू प्लीज लेट मी नो इफ देयर आर एनी वैकेंसीज फॉर सीए फ्रेशर? तो मैंने, आई लेट यू नो। मैंने बोला व्हाट रोल्स आर यू लुकिंग फॉर? तो उसने बोला आई एम अ सीए, सो एनी काइंड ऑफ रोल्स रिलेटिंग टू फाइनेंस और टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आप माइंडसेट देख रहे हो सामने वाले का? उसको क्या लग रहा है ना, जस्ट बिकॉज ही इज अ सीए तो वो किसी भी रोल में काम कर लेगा। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है क्या? सामने जो लगा है आने दो। अपने क्या, अपने अंदर का है ना वो भूखा शेर जाग जाता है थोड़ा सा, कि सामने जो मिल जाएगा बस मेरे को तो उठाना है नौकरी। कि आप लोग क्या बहुत फोमो में हो क्या लाइफ में? मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको फाइनेंस में जाना है, एंड लेट मी स्पीक विथ फुल क्लैरिटी एंड बी वेरी वेरी ब्लंट, है ना, यू आर नॉट माई ऑडियंस, आप मेरे कस्टमर्स नहीं हो, प्रोस्पेक्ट, मैं आपको वैसा नहीं देखता हूं, यू ऑल आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट? तो मैं डांट के बात कर रहा हूं आपसे, कि अगर आप सब लोगों को, है ना, फाइनेंस में जाना है, तो यार आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को किस रोल में इंटर करना है, क्या क्या चीजें हैं। ये 4-5 रोल है जिनमें मैं कंफर्टेबल हूं। प्रॉब्लम क्या है, अगर आज फाइनेंस में जाने की इच्छा है और आज अगर तूने किसी भी कारण से नॉन फाइनेंस रोल ले लिया, कि सर, मैं बताता हूं टूटेगा किधर तू एज अ सीए स्टूडेंट, तू किधर ब्रेक होगा वो समझाता हूं। अभी तू पूरा पम्ड अप है, मेरे को 45 मिनट और दे, मैं खून की रफ्तार तेज कर दूंगा, बीपी बढ़ा दूंगा, इतना पंप हो जाएगा कि मेरे को तो फाइनेंस में ही करना है। दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना, इट इज लाइक अ हाई ऑफ अ विस्की, आपने रात को पिया, सुबह तक सब भूल गए, वो वैसी चीज है। बट अगर मान लो ये मोटिवेशन आप खींच के लेके चले गए, मैंने आपको जो चीजें बताई आपने वो करना शुरू कर दी, राइट? एंड ऐसा तो होगा नहीं बेटा कि 15 दिन के अंदर कोई करिश्मा हो जाएगा, तेरे को समय देना पड़ेगा, 1 मंथ, 1.5 मंथ, फिर से तेरे को उसी मोड में जाना पड़ेगा, सीए फाइनल वाली प्रिपरेशन मोड में, क्योंकि अब कोई नई चीज, एक नई स्किल सेट है, मैंने जो सीखा है उसको मॉडिफाई करके पैकेज करना है मेरे को दुनिया के सामने, कि मेरे को इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाना आती है, मेरे को वैल्यूएशन, सबने सीखा है, वैल्यूएशन आपने सीखा है, डीसीएफ सीख के आए हो, इट्स जस्ट दैट यू डोंट नो हाउ टू परफॉर्म इट ऑन अ रियल वर्ल्ड कंपनी। सिर्फ यही गैप रह गया है। ये गैप को फुलफिल करने में आपको 1.5-2 महीने लग सकते हैं, किसी को 3 महीने लग सकते हैं, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, योर इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट एंड द सिचुएशन विच इज गोइंग फॉरवर्ड। बट होगा क्या पता है इन 2-3 महीनों में, आपके आसपास जो एमडीपीज में आपके फ्रेंड्स बने हैं, जिनको आप पहले से जानते हो, दे विल स्टार्ट गेटिंग अ जॉब। तो शुरू के 1-2 हफ्ते तो है ना आपको हल्का सा बुरा लगेगा कि अरे इसकी भी लग गई, अरे इसकी भी लग गई, अरे इसकी भी लग गई, अरे इसकी भी लग गई। आफ्टर 2-3 वीक्स है ना, यू विल सी दैट यार एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज गेटिंग अ जॉब, व्हाई आई एम सिटिंग अनएम्प्लॉयड? मैंने सीए कोई घर पे बैठने के लिए थोड़ा ना करा था। ये फैक्टर आ जाता है, एंड बंदा है ना फिर क्या करता है पता है, नो नो यार, आई के नॉट वेस्ट माई 6 मंथ्स, फिर वो एक्सेल में स्प्रेडशीट चलाना शुरू कर देता है, कि मान मेरे को अगर 12 लाख रुपए की नौकरी मिलती है, मैं 6 महीने छोड़ देता हूं, तो 6 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया। ये 6 लाख रुपए अगर आज मैं एसआईपी में डाल दूंगा और इसको 25 साल के लिए होल्ड कर दूंगा, तो अरे ऐसे पागल है क्या यार?
ऐसे ऐसे डिसीजन मेकिंग होती है क्या कैलकुलेशन करने की, कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा ये 6 महीने के चक्कर में? मैं ये बोल रहा हूं, अगर तेरे को आज फाइनेंस का रोल चाहिए तो आज ही फाइनेंस के रोल को टारगेट कर। अगर तूने आज इधर उधर परिस्थिति के कारण भी, जेन्युइन रीजन बोल रहा हूं मैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों जो मेरी सिचुएशन थी, कि आई विल नॉट बी एबल टू, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी श्योर इन माई माइंड कि मैं मेरे पे चेक को 1 महीना और डेफर नहीं कर सकता आगे, राइट? आई कैन नॉट, बिकॉज आई हैव टू पे माई home loan EMI. तो I had to go on a job the moment I became chartered accountant. अगर आप ये फाइनेंशियल सिचुएशन फेस कर रहे हो आपके साथ, ठीक है, तब तो ब्रोक लेना ही पड़ेगा, वॉट एवर यू रोल यू गेट, क्योंकि इसकी जरूरत है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है ना? बट अगर आप फोमो में आके, इफ यू आर एक्सेप्टिंग कन्वेंशनल जॉब रोल्स विच यू डोंट वांट टू डू, एंड इन दैट फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये मैं अभी ले लेता हूं, फिर 1 साल के अंदर अंदर मैं स्विच कर दूंगा, ट्रस्ट मी, आज जितने एफर्ट्स लग रहे हैं ना आपके, उससे 10x ज्यादा एफर्ट लगेंगे व्हेन यू विल बी हैविंग 1 year ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस और टैक्स एक्सपीरियंस, एंड यू आर विलिंग टू मूव योर करियर इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च, राइट? नाउ अंडरस्टैंड। इसके बाद आप देखो हाउ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्रोचेस मार्केट फॉर अ जॉब रोल। आई नो इट इज वेरी ओल्ड, 2019 का है, बहुत पुराना है, बट आज भी वैसे ही है ये। डियर प्रोफेशनल्स, आई एम अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड इन दिस अटेम्प्ट। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन ऑडिट, फाइनेंस, टैक्सेशन फील्ड, सब चलेगा, है ना? एज इफ अपन, मतलब बस भंडारा चल रहा है, आके बिठा दो और कुछ भी खिला दो, खा लूंगा मैं। यार प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल टाइम पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी by its very inherent nature is a generalist program, right? Now sir, what is a generalist means? Generalist is someone who know less and less about more and more things, है ना? जिसको बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा 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 पता होता है। तो मेरे को ऑडिट भी पता है, टैक्सेशन भी पता है। अब क्या होता है ना, अगर आप एक जनरलिस्ट प्रोग्राम करने के बाद मार्केट में एज अ जनरलिस्ट ही अप्रोच करोगे कि आई एम गुड इन ऑडिट, आई एम गुड इन फाइनेंस, नो ब्रो, यू हैव जस्ट पास्ड एग्जाम। whatever you have crammed for 6 months, you have just went to the exam and you vomited in the exam about audit, about finance, about taxation. You don't know anything about it. मुझे एक बात बताओ, आपने ऑडिट करें, आर्टिकलशिप में सबने ऑडिट करें, सबने ऑडिट करें, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ मेरे को बोल सकते हो बिना झिझके कि हमने ऑडिट के दौरान सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो, ऑडिटिंग फॉलो करिए विदाउट एनी फेल, जो लिखा है वो मैंने करा है हर चीज? आई डोंट थिंक सो। मैं एक इंगेजमेंट लेटर अगर आज आपको बनाने के लिए दे दूं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ यू विल रिलाई ऑन एआई फॉर दैट, कि एआई कर लो या पुराना कॉपी पेस्ट कर लो, उसमें क्लाइंट का नाम चेंज करके आगे फॉरवर्ड कर दो। एग्जैक्टली काम यही करा है आपने, एग्जैक्टली काम यही करा है, क्लाइंट का नाम चेंज करो और आगे फॉरवर्ड करो, राइट? नाउ अंडरस्टैंड। देखो जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेज्यूम एंड अ प्रोफाइल? दिस इज अ रेज्यूम, ना चालबे, ना चालबे। वाई ना चालबे सर? तू और पहले रेज्यूम पढ़ लेता है, ठीक है? एक बच्चा है, अभी अभी सीए बना है, ठीक है? मेजर क्लाइंट्स कौन कौन से क्लाइंट पे काम कर रहा है, लीडरशिप है, स्किल है, टीम वर्क स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्वर हो जी, बहुत अच्छी बात है। सर्टिफिकेट्स में क्या लिखा है? 2 सर्टिफिकेट करें पूरे सीए के दौरान, 5 साल 4 साल के करिकुलम में 2 सर्टिफिकेट भाई साहब ने करे, और उसको सबसे टॉप में लगा रहे हैं कि एक तो मैंने करा है एमसीएस और एक मैंने करा है एडवांस आईटी। भाई ये भी तूने 2 इसलिए करे क्योंकि कंपलसरी कर दिया था, है ना? अगर ये वो इंस्टीट्यूट कंपलसरी नहीं करता, तेरा रिजल्ट नहीं रोकता, तो तू ये भी करने नहीं वाला था। टेक्निकल स्किल्स में आप देखो क्या लिख रहा है आज के टाइम आदमी, है ना? दुनिया में, मैं आपको बताता हूं, बिफोर वी रीड दिस टेक्निकल स्किल्स, उसको कितने प्राउड के साथ लिखा जा रहा है। एंड आपको ये सोचने की जरूरत है हम कहां पर है। दुनिया इतनी एडवांस हो रखी है एआई के अंदर, राइट? देयर आर डीप सीक, यू नो, डीप सीक इज फ्लोटिंग एवरीवेयर, है ना? एंड सी क्या टेक्निकल स्किल्स आ रही है,
advanced knowledge of MS Excel, X lookup, V lookup, H lookup formulas, sum ifs, pivot table. Do you think so that these things are called as technical skills in today's scenario? I don't think so. क्या ये तो bare minimum requirement है? Is all these things are bare minimum requirement, right? SAP, Tele, ERP, Computex. Core competency क्या है? Everything he has written. Strength में लिखा है known for speed. Known for speed मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नीड फॉर स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर का रिज्यूम. नोन मतलब पूरी दुनिया में जाना जाता है. नोन फॉर स्पीड, एफिशिएंसी, मल्टीटास्किंग, राइट? आई एम प्रिटी श्योर अगर वो इंटरव्यूअर को आपके मजे लेने होंगे ना, इफ यू जस्ट हैव टू मेक फन ऑफ यू, वो बोल देगा प्लीज प्रूव योर सेल्फ दैट हाउ डू यू नोन फॉर योर स्पीड, एफिशिएंसी एंड मल्टीटास्किंग. द ऑब्जेक्टिव इज क्या every word you are writing in your resume, you have to take full responsibility of it, to be able to substantiate it when the time is right. Professional expertise में देखिए, expertise in handling statutory audit, internal audit, various books of accounts, implementing financial procedure, MIS reporting, GST, ITC, review of accounting, advising other department, tax compliances. Work experience में team lead internal audit में, GST returns compliances फाइल करें. क्या क्या करा है GST में? रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन, CR, पोस्ट आर्टिकलशिप, GST रिटर्न्स फाइल करें, वैट के रिटर्न फाइल करें, 15 CA भी फाइल किया है. प्लीज, द आइडिया इज दिस माइट बी suitable for a tax role or for a audit role. Do you think so that ये चल पाएगा थोड़ा भी फाइनेंस में? आई डोंट थिंक सो ब्रो. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तेको खत्म, तेको देखना है प्रोफाइल क्या होता है. मैं इसका दिखाता हूं तेको प्रोफाइल. 1 मिनट है ना. सिर्फ इग्नोर कर देना कि बच्चा सीए है. तू दिमाग में ये लेके चल कि तू एक 19-year-old स्टूडेंट का, ही इज अ 19-year-old गाय, है ना, 19-year-old स्टूडेंट का रेज्यूम पढ़ रहा है. ठीक है, उसके एकेडमिक्स को मैं 2 मिनट के लिए नजरअंदाज कर दूंगा, बिकॉज एकेडमिक्स सबके एक जैसे नहीं रहते हैं. एंड एनीवेज मैं यहां पर आई कैन कंसिडर द एकेडमिक्स ऑल्सो, बिकॉज आप लोग भी तो AIR अब टैटू हो ही चुका है. ठीक है, तो डजेंट मेक एनी डिफरेंस. Awarded the Inspire Scholarship Award by Ministry of Science and Technology for academic performance in ISC board. Facilitated by the government of Uttar Pradesh for this. Received undergraduate admission in this. Certifications. हमारे लाला ने लिखा था एडवांस मैनेजमेंट स्किल और IT. यहां पर क्या बोल रहा है सर्टिफिकेशंस में? Covered topics like financial engineering, risk management, global financial crisis, corporate finance, quantitative modeling markets, scenario analysis through more than 10 certificate course on Coursera. है सर, ये तो Coursera के कोर्स है, कोई भी कर सकता, तो करना ब्रो. कर सकता है तो कीवर्ड लेके आना अपने रेज्यूम में. अगर कोई भी कर सकता है तो डू इट ब्रो. व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट? Completed advanced valuation and corporate finance modules taught by Professor Aswath Damodaran at NYU. Uncertified. Why he has written uncertified? क्योंकि उसने YouTube पे करा है. ठीक है, इंटर्नशिप्स देखो आप. वर्कड अंडर मिस्टर अविनाश सराफ ऑन वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग मॉडल्स टू स्टडी द चेंजिंग ट्रेंड इन इक्विटी मार्केट्स and give the buy and sell recommendation of the stock for stock portfolio companies. Covered FMCG, cement, sugar, paint and chemical sector. Built a live model on Excel and R using APIs to capture the data on real-time basis and score the stocks. Investment banking internship करिए. Conducted in-depth market research to optimize the capital structure of the company. पढ़ा तूने capital structure क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? याद है मोदीग्लानी मिलर अप्रोच, ऑल दोस थिंग्स, राइट? बट उसको ऑप्टिमाइज कौन कर रहा है? कोई MBA कर रहा है. चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा है. चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ पढ़ के आया है ना. डिवाइस स्ट्रैटेजीज टू कट कॉस्ट. चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्टिंग पढ़ के आया है बस. देखो मैं पास होके आया, AIR है. आई कैन नॉट डिवाइस स्ट्रैटेजीज. वो कैसे करेंगे? आई डोंट नो दैट, है ना. मेरा दिमाग नहीं चलता उधर. एक्सपैंड इन न्यू सेक्टर्स, right? Help prepare a pitch book valuation model. Project team analyze changing working capital requirements. Bro, पता है तेरे को क्या चीज है? सुन मेरी बात. ये तो चल ठीक है, तू बोल सकता है कि सर कोविड का टाइम था, कोविड में मिल गया होगा. एवरीथिंग इज जस्टिफाइबल, है ना. उसके बाद भी ऐसे लोग हैं जिनके प्रोफाइल्स अवेलेबल है मेरे पास. बट ड्यूरिंग हिज एजुकेशन
तू देख उसने कॉलेज में क्या क्या काम करा है। फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड आईएफएस नेटवर्क सेंट स्टीफन कॉलेज, एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयरमैन कैंपस प्लेसमेंट सेल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल, स्कूल कैप्टन। अपने यहाँ क्या होता है पता है? व्हाट हैपेंस विद अस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे यहाँ पर ये होता है कि अगर सिकासा, विकासा, है ना, वो जो द स्टूडेंट बॉडी होती है ना, अगर वो कोई, इफ दे आर ऑर्गेनाइजिंग एनी इवेंट ना, वी लाफ एट देम, राइट? वी यूज्ड टू लाफ एट देम कि अरे फालतू का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक मेंटालिटी होती है कि बेसिक, इंक्लूडिंग मी, दे कैरी अ पर्टिकुलर माइंडसेट ऑफ डिफरिंग एवरीथिंग टिल द टाइम दे बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब वेट लॉस करना है, नहीं नहीं, पहले अभी सीए का एग्जाम हो जाने तो उसके बाद वेट लॉस करेंगे। स्विमिंग सीखना, अरे ये सब काम करना थोड़ा है मम्मी, स्विमिंग के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। जापानीज सीखनी है, नहीं नहीं, ये सब फालतू का काम करेगा तो फिर फेल हो जाएगा, मेरे को पहले सीए करने दो उसके बाद ये काम करूंगा। छोटी छोटी चीजें आपने डेफर कर रखी हैं। जस्ट गो, लुक बैक एंड आइडेंटिफाई कि आपने कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपने सिर्फ डेफर कर दिए थे, जो आप कर सकते थे इजीली। ब्रो, आपकी लाइफ से रस खत्म हो गया है ना, the your life has become flavorless. Try to look into yourself, right? है ना, क्या बचा है बताओ? आप आज भी क्या टेंशन है दिमाग में कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एब्सोल्युटली, 100%। यू कैन नॉट से नो टू मी, है ना, मैं मतलब 10 साल का सीनियोरिटी लेके ही बैठा हूं कम से कम। ये है भाई, समझ। अब ये प्रोफाइल तू मेरे को एक बात बता, आज से 10 years डाउन द लाइन यू आर अ हेड ऑफ रिसर्च इन इक्विटी रिसर्च फर्म, एंड दिस काइंड ऑफ अ प्रोफाइल, दिस काइंड ऑफ अ रेज्यूम कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। यार ब्रो, कुछ नहीं, इफ नॉट एनीथिंग, क्या तू मिनिमम इस बंदे से मिलना चाहेगा कि यार इससे बात करके देखता हूं, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में इसने ऐसा क्या फोड़ दिया जो ये इतना लिख रहा है ना? यहां पर एक ऐसा क्लेम है जो मैं चाहता हूं दैट ये बंदा मेरे सामने आए एंड उस क्लेम को सब्सटैंशिएट करे। प्लीज, मेरी बात समझ, आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है? अप्रोच का, माइंडसेट का क्या डिफरेंस है? सर, मेरे को थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई करके बताओ ना कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स है जिनके लिए मैं टारगेट कर सकता हूं। यू कैन टारगेट फॉर इक्विटी रिसर्च। मैं आपको बोलता हूं, दिस इज द टॉप नॉच प्रोफाइल। यू कैन टारगेट द टॉप नॉच। मेरा बायस है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इक्विटी रिसर्च में जाए। आई हैव अ बायस फॉर दैट। आई टेल यू द रीजन व्हाई व्हेन विल डिस्कस elaborately about it. Investment banking, these two things we'll cover today, है ना? प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, उसके लिए नेहा और वैशाली हैं, दे विल टेक द सेशन, राइट? क्या होता है ना, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन आई कैन एक्सपेक्ट, राइट, इफ आई हैव टू गो इनटू इक्विटी रिसर्च? डोंट रीड दिस। मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं, इफ यू आर अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ एंड विदाउट रैंक, तो मैं एक रेंज आपको दे देता हूं। यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 9 लाख रुपीज टू 14 लाख रुपीज। इट कैन गो अप टू 16 लाख रुपीज ऑल्सो इन सम एमएनसी बैंक्स, लाइक जेपी मॉर्गन ने अगर हायर कर लिया, यूबीएस, देर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज यूबीएस, जेपी मॉर्गन अगर इन्होंने हायर कर लिया, तो आईबी के अंदर अगर तू जाता है, तो आईबी के अंदर भी अ प्लेन चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्रोचिंग अ बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, तो वो 9 लाख रुपीज तक एक्सपेक्ट कर सकता है। एंड मेजोरिटी वही 14 लाख टू 16 लाख रुपीज तक रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी फर्म है, विच फर्म इट इज। नहीं, 9 लाख रुपीज का रिजिड मत बना देना कि अरे 9 लाख, इससे कम में तो, ऐसा नहीं होता ना, सब सिचुएशन की बात है। तो अगेन, नाउ अंडरस्टैंड दिस, लाइक टू ओपन द स्टेज फॉर यू, नॉट राइट नाउ, बट थोड़ा सा आपको कुछ समझाना है। देख यार, इक्विटी रिसर्च, बताता हूं क्या चीज है एग्जैक्टली, समझ।
इतना सिंपल सा एक्सरसाइज है इक्विटी रिसर्च। आप एक एनालाइज करते हो, क्या एनालाइज करते हो? यू एनालाइज अ बिजनेस, यू एनालाइज इट्स सेक्टर, यू एनालाइज द इकोनॉमी इन विच इट्स ऑपरेट, एंड यू गिव योर ओपिनियन वेदर द स्टॉक इज अ बाय और अ सेल फॉर यू। मुझे ऑनेस्टली बताना, आप सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्लीज आपको अगर लगता है ना, तो आप मुझे प्राइवेट में इसका जवाब दे दो, वहां प्राइवेट ऑप्शन भी है, अगर शर्म आ रही है तो, इफ यू आर फीलिंग अशेम्ड अबाउट इट, राइट? आर यू कॉन्फिडेंट कि अगर मैं आपको अभी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट दे दूंगा पिछले 3 साल की, तो आप उस पर 3 से 4 पेज लिख दोगे अपनी ओपिनियन देते हुए उसके फाइनेंशियल्स पे? यस और नो? यस और नो? खुद से पूछो अंदर। समझना, सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं, ये लिख रहा है तू, वो इमेजिन कर। एक काम करना ना, ये सेशन के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैलेंस शीट ले लेना, छोटी कोई कंपनी सिंफनी का ले लेना, कूलर बना के बेचती है, बिजनेस मॉडल भी बहुत आसान है, कूलर बनाते हैं बेचते हैं, बस और क्या बिजनेस मॉडल है? यू कैन नॉट डू दैट ब्रो, दैट इज द रियलिटी अनफॉर्चुनेटली। कौन सी चीजें हैं पता है जिन पे स्ट्राइक करना है? सर मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई रोड मैप हो सकता है क्या, 30 डेज का या 60 डेज का, जो अगर मैं फॉलो करता हूं तो मेरे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इक्विटी रिसर्च में? एब्सोल्युटली। देखो ब्रो, आज के टाइम है ना, एक चीज आपको इनहेरेंटली माननी चाहिए, वो इम्प्लाइड है, कि सब जगह भीड़ लगी हुई है बहुत ज्यादा, है ना? एवरीवेयर, हर जगह भीड़ लगी हुई है। एंड आज के टाइम है ना, आपको अगर रिजल्ट्स चाहिए ना, तो आपको भीड़ से अलग हटके रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा खुद को। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आज आके आपको पीपीटी रीड करके चला जाता, एमडीपी में कोई ना कोई तो आया होगा जो पीपीटी रीड करके गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, 100% होता ही होता है। सरकारी, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ सरकारी प्रोग्राम है, समझो मेरी बात। Parth समझ लो। sir, यस। Parth sir, a bit of more, Parth sir, a bit of more English, nothing else. Everything going well, सो but सॉरी यार, आई एम सो सॉरी गाइस, वो you एक्चुअली क्या है get ना, एंड सी you are इट, into the देयर इज नो flow. देयर इज I नो डिसरिस्पेक्ट टू योर मदर टंग, but Yeah. it is just that, and I'm not imposing Hindi on you, you need to understand this, right? But and it is not the fact that I'm not fluent in English, right? It's just that you मेरी mother tongue है हिंदी, and मैं Oh, you. उसमें निकल जाता है, I that's it. understand. You get into the So flow. yeah, 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 Yeah. So yeah, yeah, just so a sorry, just so a sorry, request. so sorry guys, Yeah. ठीक है, please bear with me, right? So the idea is, until unless you'll be able to show yourself different from the crowd, you will not be able to leave the mark. अगर मैं आज आके मेरी एक पर्टिकुलर स्टाइल में, राइट, इन द वे आई स्पीक, राइट, नॉट यूजिंग वेरी मच पीपीटी, putting efforts, modulating my voice to make you engage all the time, so that you can leave the reels, leave the phone aside and pay attention over here, नौकरी पे जाना है आपको, राइट? आई वुड नॉट बी एबल टू लीव अ मार्क, है ना? अगर मतलब समझ लो, दैट इज द सेम थिंग हैपेंस विथ यू। सर क्या मेरे साथ भी ये चीज एप्लीकेबल है? तो फिर मैं क्या करूं? पता है फिर तू क्या कर? एक 3 स्टेप मॉडल है जो मैं तेरे को बताना चाहता हूं। फॉलो दिस 3 स्टेप मॉडल, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, all my cohorts, all learnings which I am delivering is based on these 3 step model. The birth of evaluation school is happened because of this 3 step model. It is nothing. सबसे पहले नंबर 1, you have to identify the key skills required for your dream role. मैं यहां पर equity research की बात करता हूं for a time being, ठीक है? कि सर इक्विटी रिसर्च में कौन कौन सी की स्किल्स हैं जो मुझे चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग, है ना? नंबर 2, रीडिंग अलॉट 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 रेज टू द पावर 10। बहुत पढ़ना पड़ता है,
कारण क्या है समझ। अब है ना, ये बात ध्यान रखना, जिसने भी लाइफ में आपको बोला ना दैट वंस यू क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी दे विल बी रिलैक्स इन योर लाइफ, ना मौज ही मौज है, मौज काटो फिर जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? उसने झूठ बोला है फिर से, अगेन अ रियलिटी चेक। क्या बीइंग अ प्रोफेशनल मेरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्या? यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ एवरी डे ऑफ योर लाइफ। बीइंग अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, कुछ की स्किल्स हैं जो आपको चाहिए। नंबर वन, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां मैं बैलेंस शीट टैली करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं दैट इफ somebody ask you that okay, चलो मैं एक असाइनमेंट देता हूं आपको, आप मुझे बताना, कावेरी सीड्स करके देयर इज दिस बिजनेस, ठीक है? there is this company, a listed business called as Kaveri Seeds. You know, you will see from 2013 to 2023, ये 10 years में रेवेन्यू वॉज फ्लैट। रेवेन्यू फ्लैट था, 10 साल तक सेम रेवेन्यू पे काम कर रही थी, वही एक ही रेंज में रेवेन्यू जा रहा था। एंड 2023 के बाद वो रेवेन्यू शूट अप कर गया, ठीक है? नाउ मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे रेवेन्यू की जनरल एंट्री पास करवाना नहीं है, वो गया जमाना, पुरानी बात हो गई, भूल जाओ उसको। माय ऑब्जेक्टिव इज कि बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट आई वांट यू टू गेट इनटू द detail of this and identify that why the revenue was stagnant for last 10 years, what happened in 2023 that the revenue started shooting up, right? And biggest, इसमें यहां पर मैं एक और add on देता हूं, company had zero debt all this time। मतलब ऐसा नहीं है दैट हम बिजनेस को स्केल नहीं कर पाए बिकॉज वी वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम डेट। कंपनी हैड जीरो डेट इन ऑल दीज 10 years। अगर रेवेन्यू बढ़ता है, व्हाट इज द रीजन व्हाई द रेवेन्यू इज राइजिंग, राइट? वेदर दिस राइज इज सस्टेनेबल और नॉट, what are the factors contributing to the rising? Is it a temporary phenomena or it is not a temporary phenomena? दूसरी चीज, if revenue increase हो रहा है, is it increasing by margins or not? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है हर रेवेन्यू इंक्रीज मार्जिन का इंक्रीज दे। कारण क्या होता है, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है नॉट बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम बट बिकॉज ऑफ द प्राइस, तो देयर माइट बी अ सिचुएशन दैट योर रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव शॉट अप एंड उसका आपने एज इट इज लोड पास ऑन कर दिया अपना प्राइस बढ़ा के, तो आपके मार्जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। शक्कर महंगी हो गई, कोल्ड ड्रिंक के रेट बढ़ गए, और उसमें मार्जिन क्या कमाया उसने, समझना। तो व्हाट वी वांट इज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि मेरे को उसकी डेप्थ में जाना है। ऑल प्लीज दीज थिंग्स, ये जो स्किल सेट की बात हो रही है आपके सामने, ये तो बहुत बेसिक स्किल सेट है। मैं आपको ऐसे ही बताता हूं, आपको समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि इसको इसको पियर्स करना कितना इजी है अगर आपके पास डायरेक्शन सही है तो। देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन हु इज अ बैचलर्स इन फार्मास्यूटिकल, ही जॉइंड इक्विटी रिसर्च कोहर्ट। मैं बहुत बेसिक चीज आपको, सर एक मिनट, सर क्या आप अपनी इक्विटी रिसर्च कोहर्ट का प्रमोशन कर रहे हो? क्या मैं ज्वाइन कर लूं इसके बाद? तेरे को जरूरत नहीं है, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो। मैं तेरे में इतना कॉन्फिडेंस दे जाऊंगा, अभी ये सेशन खत्म होते होते मैं कुछ चीजें बता दूंगा, अगर तू ढंग से कर लेता है ना, जेन्युइनली आई एम सेइंग कि आपको जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर कॉन्फिडेंस की कमी है कि पहले भी मैंने मक्कारी करी है पढ़ते समय और अभी भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ढंग से, तब यू नीड अ हैंड होल्डिंग, बल्कि ऐसे जरूरत नहीं है। तो आई एम नॉट हियर फॉर अ प्रमोशन, राइट? तो वो आप दिमाग से बिल्कुल निकाल के सुनना सारी चीजें। एक स्टूडेंट है फार्मा, बी फार्मा करा है, ही केम टू माई इक्विटी रिसर्च कोहर्ट एंड उसने मेरे को बोला सर मेरा बी फार्मा है, क्या पॉसिबल है? मैंने बोला बिल्कुल पॉसिबल है, पहले तू कोहर्ट पे फोकस कर। ही इन्वेस्टेड 4.5 5 months ऑन कोहर्ट, अंडरस्टूड ईच एंड एवरी लाइन आइटम। उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब भी नहीं पता था, नॉट इवन किडिंग टू यू, वो भी मैंने सिखाया कोहर्ट में। मतलब ऐसा नहीं कि प्राइड से बोल रहा है, वो भी उसने कोहर्ट से सीखा। नाउ द आइडिया इज that I specifically told him that since you are from a pharma background, you should pick a pharma company. And that is what exactly he did. He picked Loris Lab and उसने उस Loris Lab के around पूरा research करा for 4.5 5 months. Do you know where he got placed? Nirmal Bang Institutional Equity Research, not retail equity research. One grade up
institutional equity research, and very recently he made a switch. 14 लाख रुपए के पैकेज पे स्विच मारा है उसने. द आइडिया इज दैट यार अगर एक बी फार्मा वाला कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं. मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि दो रीजन है. या तो मुझे पता नहीं है या फिर मैं भेड़ चाल में हूं. लेमिंगेट्स, राइट? डू यू नो हु आर लेमिंगेट्स? वो एक दूसरे को देख के चलते हैं. सब ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करता हूं. आप ज्यादा टेंशन में हो कि मेरे को पाइथन सीखने की जरूरत है क्या सर, मेरे को पावर बीआई अरे भाई पहले बेसिक तो समझ, पहले कॉन्फिडेंस तो लेके अपने अंदर की मैं ये चीज कर सकता हूं. लर्निंग प्लस अनलर्निंग, दैट इज द सेकेंड स्टेप. आपको जो भी सिखाया गया है वो बहुत रोट है. अभी रिसेंट की बात है, आई वॉज रीडिंग ऑन लिंक्डइन, एक स्टैनफोर्ड एमबीए स्टूडेंट ने कहीं इंटरव्यू दिया किसी पॉडकास्टर को, एंड ही वाज कंप्लेनिंग अबाउट द करिकुलम ऑफ स्टैनफोर्ड. वो बोलता है वी आर नॉट सैटिस्फाइड, वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग एट स्टैनफोर्ड, ऑल द करिकुलम्स आर आउटडेटेड, वी फेल्ट वी लेफ्ट बिहाइंड एंड वी आर नॉट रेडी for the roles which will be offered to us as a Stanford MBA. Right? Such a huge claim. भाई unfortunately ना, unfortunately finance is one of those subjects among your 6 subjects जिसमें whatever you have read in books ना, that is very different than what happens on reality. अगर तूने 143 सेक्शन पढ़ा है कि नोटिस 143 सेक्शन में आएगा, तो नोटिस के ऊपर जब नोटिस आएगा तो उस पर 143 ही लिखा होगा. यस और नो? यस. बट मेरे को आपने पढ़ा दिया कि रिस्क फ्री रेट मतलब होता है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड. यस और नो? आपने पढ़ के आए हो एएफएम. व्हाट इज रिस्क फ्री रेट? रिस्क फ्री रेट इज अ 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, एवरीवन. बट इट इज नॉट. Parth sir, I think we lost you. Parth sir, Parth, you are not audible. I think you went on mute. Just check. जी, हमें सिखा दिया, हमें पढ़वा दिया, हमें रटवा दिया कि रिस्क फ्री रेट का क्या मतलब है. कि रिस्क फ्री रेट का मतलब यह है कि 10 ईयर गवर्न. एक बच्चे से मैंने पूछा था सीए स्टूडेंट से कि सर रिस्क फ्री रेट क्या होता है, तो बोले सर वो तो बोला है कि क्वेश्चन में दिया होगा, हमेशा आपको टेंशन नहीं लेना है. एक्चुअली में ऐसे ही होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है रिस्क फ्री रेट हमेशा. बट जब तू ग्राउंड पे जाएगा बोलेगा सर मैं 10 ईयर गवर्नमेंट, वो भगा देगा ब्रो. अगर तूने ऐसे एक्चुअल वैल्यूएशन परफॉर्म कर दिया. द रीजन इज, क्या इंडियन गवर्नमेंट की भी डिफॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट करती है क्या मार्केट में? करती है. जो बड़ी बड़े देश इंडिया को लोन देते हैं, क्या वो डर जाते हैं कि इंडिया डिफॉल्ट कर देगा? डर जाते हैं. सर क्या वो भी इंश्योरेंस लेते हैं? लेते हैं. आपने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का नाम सुना है? सुना होगा. याद नहीं आ रहा है वो बात अलग है, सुना तो है. सीडीएस बोलते हैं उसको, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, लाइक एन इंश्योरेंस कंपनी. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? फाइनेंस में जो लर्निंग्स है ना वो बहुत रोट है. ट्रस्ट मी, अगर आपके माँ बाप के ब्लेसिंग्स के कारण आप फाइनेंस का रोल क्रैक कर गए ना, तो आपको क्या अगले 1 साल हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. एवरी फकिंग डे, एवरी डे, रोज. आप पता है क्या है सर, ये हमको गलत क्यों पढ़ा दिया? मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज को लिख के भेज दूं क्या ईमेल में कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड नहीं होता है रिस्क फ्री रेट? क्या हुआ ब्रो पता है? फाइनेंस है ना यूएस में बना. अब यूएस जो है ना वो अपने आप में रिस्क फ्री एंटिटी है. सर ऐसे कैसे यूएस रिस्क फ्री और इंडिया नहीं है? यूएस है ना डिफॉल्ट नहीं मार सकती कभी भी. सर क्यों नहीं मार सकती? कभी मार ही नहीं सकती, क्योंकि अगर यूएस ने डिफॉल्ट मार दिया ना तो क्या ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी? सबके पास फॉरेन रिजर्व्स में यूएस है, यूएसडी लेके बैठे हैं हम लोग, है ना. वो सबकी वैल्यू रातों रात खत्म हो जाएगी. द इकोनॉमी विल श्रिंक. तो कोई मारने नहीं देगा यूएस को डिफॉल्ट. तो जब फाइनेंस बना तो उन्होंने यूएस के पर्सपेक्टिव से बनाया कि अच्छा रिस्क फ्री रेट मतलब जो यूएस गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट रेट देती है वो. हमने क्या करा जी, उनकी किताबें जैसे ही हमारे पास आई हमने भिजवाई दरियागंज, दिल्ली, और चकाचक उसको रीफ्रेजिंग करके बंदों को बिठवा के उसका इंडियन वर्जन बना के बेच दिया मार्केट में.
और सब लोग वही पढ़ाए जा रहे हैं। तो हम जो फाइनेंस पढ़ते हैं एक्चुअली में वो एज इट इज एप्लीकेबल है यूएस पे, यूके पे, कनाडा पे, ऑस्ट्रेलिया पे, न्यूजीलैंड पे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पे, डेवलप्ड मार्केट्स पे, सिंगापुर पे, स्विट्जरलैंड पे, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इमर्जिंग मार्केट्स। यहां पर बड़ा डिफरेंस आता है। प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर तूने सब सीख भी लिया ना, फिर वही इशू है लाइमलाइट का, दैट हाउ विल यू कम इन अ लाइमलाइट, राइट? सर मुझे सब पता है, मुझे इक्विटी रिसर्च में जाना है, आई वांट टू मेक माय करियर इन इक्विटी रिसर्च, सी व्हाट अ रेज्यूम आई हैव प्रिपेयर्ड, सच अ ब्यूटीफुल रेज्यूम आई हैव prepared, right? And I know everything. That won't work na. But just imagine if you are sending a well prepared equity research report along with your resume, don't you think that it will invite, or higher probability of inviting a further discussion? It will 100%. Why? Because you are again you are making a claim कि देख के मैंने बनाया है। अच्छा तूने बनाया है, ला बता, मैं तेरे को पूछता हूं तेरे से। अंडरस्टैंड, ध्यान से समझना। इक्विटी रिसर्च और आईबी, इन दोनों को क्रैक करने में डिफरेंस क्या है? अगर मेरे को दोनों रोल के लिए मैं इंटरव्यू के लिए बैठ रहा हूं तो व्हाट इज द डिफरेंस, मैं कैसे क्रैक कर सकता हूं? आईबी में अगर तू गूगल सर्च करता है ना, इफ यू डू अ गूगल सर्च दैट इंटरव्यू इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, वैल्यूएशन इंटरव्यू क्वेश्चंस, एमएनए इंटरव्यू क्वेश्चंस, यू विल गेट एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन लिंक्डइन, मिल जाएगा गूगल पे आपको, राइट? गाइज, लैग हो रहा है क्या? इज देयर एनी लैग? चैट में लिख के बताइए। परफेक्ट चल रहा है सब? नाउ अंडरस्टैंड। बट क्या होता है ना, मतलब मेरा ये बोलना है कि आईबी का जो इंटरव्यू है ना वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है। वो तेरे से 4-5 सवाल पूछेगा, मैं ही बता देता हूं अभी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। नंबर 1, वॉक मी थ्रू अ डीसीएफ मॉडल, मेरे को बता कि डीसीएफ मॉडल क्या होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नंबर 2, वो एक क्वेश्चन पूछेगा दैट इफ वी रिड्यूस द डेप्रीसिएशन बाय 1,000 रुपीज, व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन कैश फ्लोस? बताओ लिख के, क्या इंपैक्ट आएगा कैश फ्लो पे? मैंने अगर डेप्रीसिएशन गिरा दिया 1,000 रुपीज से, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो? नो इंपैक्ट, नो इंपैक्ट, नथिंग, है ना? नो इंपैक्ट, नो इंपैक्ट, वेरी गुड, नो इंपैक्ट, एवरीवन, नो इंपैक्ट। देखो, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। मेरे सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं, भावी, नए, बिल्कुल बने बने ताजा माल, वेरी गुड। 11वीं से 11th से रटवा दिया उसको, क्या ब्रेन में प्रोग्रामिंग करके डाल दिया पूरा घुमा के कि भर ले अंदर से कि डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता। बोलना मत आज के बाद कि कैश में कुछ चेंज हुआ है, मार मार के। डेप्रीसिएशन से टैक्स सेविंग नहीं होती है। तू डेप्रीसिएशन अगर 1,000 रुपीज से कम करेगा और तेरा 30% का टैक्स ब्रैकेट है तो तेरा 300 रुपीज का टैक्स एक्सपेंस नहीं बढ़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ विल यू टेकल दैट क्वेश्चन ओवर देयर प्लीज। आईबी के अंदर क्या होता है ना, एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका कोई लर्निंग बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़े और पास होके निकल गए। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, इक्विटी रिसर्च में सिर्फ एक कोई चीज है बेटा जो तेरे और नौकरी के बीच में आ जाएगी, वो है इंटरव्यू। और इसका इंटरव्यू जो होता है इक्विटी रिसर्च का, वो बहुत यूनिक होता है। कैसे यूनिक होता है पता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आई एम एन इंटरव्यूअर एंड आप इंटरव्यू है, आप सामने बैठे हो, मेरे कैंडिडेट हो। अब है ना, आप इक्विटी रिसर्च का इंटरव्यू देने आए हो, मैं इंटरव्यू आपसे ले रहा हूं। नाउ द ब्यूटी अबाउट इक्विटी रिसर्च इज, मैं तेरे से रैंडमली कोई भी कंपनी पे सवाल नहीं पूछ सकता। जैसे मैं पूछता हूं, राहुल, डू यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन एल&टी, वुड यू बी एबल टू आंसर दैट? यू वोंट, राइट? या मैं पूछता हूं कि दिलीप, आप बताओ कि आजकल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में क्या चल रहा है? आई डोंट नो सर। वाई? Because 7,500 listed companies and we have 7,500 listed companies. Do you think so that it is practically possible for a person to know each and everything about all 7,500 companies? Practically not possible. तो equity research interview को लेने का, कंडक्ट करने का तरीका बहुत अलग होता है। उसमें पता है क्या होता है? उसमें इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, he will ask you that which company you have prepared on.
which company you are tracking, which sectors you are tracking. Please understand, है ना? तो मतलब बॉल मेरे कोर्ट में है. तो सर वो बंदा जो बी फार्मा वाला था, उससे पूछा था, क्या पूछा था उससे, कौन सी कंपनी ट्रैक कर रहा है बता. मैं लॉरेस लैब्स ट्रैक कर रहा हूं. बातचीत शुरू होती है. ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये बहुत नॉर्मल है. इट इज अ एवरीडे फिनोमिना इन इक्विटी रिसर्च इंटरव्यू. बातचीत शुरू होती है. इंटरव्यू इनिशियली स्केड्यूल होता है फॉर 45 मिनट्स, बट इट वेंट फॉर 2 आवर्स. वाई? ऐसा क्यों होता है पता है? ये हमेशा तब होगा जब दो बहुत ही क्यूरियस ब्रेन्स एंड दोज टू ब्रेन्स हु लाइक टू टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट्स, वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं. आप मेरे को एक बात बताओ, 2 घंटे तक इंटरव्यू चल सकता है? इंटरव्यू नहीं चल सकता ब्रो, इट इज अ कॉन्वर्जेशन. क्या फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद इंटरव्यू खत्म हो चुका होता है? आप रिलैक्स हो चुके होते हो, आपको पता हो चुका होता है कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, फर्स्ट 15-20 मिनट्स मेरे कैसे गए. सामने वाला भी अपना दिमाग बना चुका होता है. बस वो फिर रीअफर्म कर रहा होता है आपको कि आप में कितना मजा है, और है ना. तो वो कन्वर्जेशन मोड में आ जाता है. अच्छा बताओ आप और क्या करते हो, राइट? उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको चेंज दिखेगा. ईज, एक एज आ जाता है ना. ऐसे करके अगर मैं तेरे से बात कर रहा हूं कि बता आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है एलएनटी के अंदर, नो आई एम वेरी चिल ना. ऐसे तो मैं बहुत चिल होके बैठा हूं, राइट? तो इक्विटी रिसर्च में तेरे हाथ में चाबी है भाई. तू जो बोलेगा ना वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा. सर उसको कैसे पता होगा? हाउ डज ही नो? अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल रैंडमली जाके बोलता हूं कि मैंने ब्रिटानिया को रिसर्च करा है सर अच्छे से, राइट? तो अब उसको कैसे पता है कि ब्रिटानिया कंपनी, उसको पता नहीं है. बट वो भी इतने सालों से इक्विटी रिसर्च में ना. मैं 10 क्वेश्चन बना दूंगा किसी भी बिस्किट बिजनेस पे. क्या आप बताओ, सबसे पहली चीज वो पूछेगा तेरे से, बताओ व्हाट इज योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप कैसे रिसर्च करते हो, आप क्या क्या चीजें देखते हो. डू यू सी द मैनेजमेंट क्वालिटी, क्या आप मैनेजमेंट की क्वालिटी का एनालाइज करते हो कि मैनेजमेंट कैसा है? सर मैं कैसे करूं मैनेजमेंट असेसमेंट? मैंने है ना बेटा यूट्यूब चैनल पे अपने एक फ्री प्लेलिस्ट, बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट्स हैं, और ये पूरे पूरे कोर्सेज हैं. यहां पर आपको कहीं भी अपसेलिंग नहीं मिलेगी, एक भी रुपए की. मैं गारंटी से ठोक के देता हूं, सारे वीडियो मैंने बनाए. मतलब वो नहीं है कि हर 2 मिनट के बाद मैं आके पिच कर रहा हूं प्रोग्राम, है ही नहीं कहीं भी. प्योर नॉलेज डिलीवरी आपके, आप लोगों के लिए. दोज हु जस्ट वांट टू टेस्ट द वाटर, जो ऊपर ऊपर से बस पानी को देखना चाहते हैं कि अरे इसमें मेरे को फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं. तो सर कौन कौन सी ऐसी प्लेलिस्ट है इक्विटी रिसर्च की जो अगर मैं आप देखूं तो मैं एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूं? डेफिनेटली बाकी की सारी एफर्ट्स तो मुझे ही डालनी पड़ेंगी, राइट? ऑल द एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी वो आपकी साइड से लगेगी. एग्जीक्यूशन इज योर प्ले ओवर हियर, राइट? सो नंबर 1, आई थिंक आइडियली यू शुड स्टार्ट विथ आवर मैनेजमेंट एनालिसिस प्लेलिस्ट. आपको जो मैनेज उसमें है ना, नॉट ओनली यू विल लर्न हाउ टू एनालाइज कंपनीज मैनेजमेंट. देखो जैसे क्या होता है पता है, अब मैं आपको बोलता हूं कि एक है इंफोसिस लिमिटेड, है ना, और दूसरी एक कंपनी है चिंटूसिस लिमिटेड. बताओ दोनों में से किसका मैनेजमेंट क्वालिटी बेटर है? किसका बेटर है? सोचने की जरूरत नहीं, इंफोसिस का बेटर है. दिमाग ही नहीं लगाना है, चिंटूसिस का कैसे बेटर होगा, उसके तो नाम में ही चिंटू है. लेकिन अगर मैं बोलता हूं इंफोसिस और टीसीएस, इन दोनों में से किसका मैनेजमेंट क्वालिटी बेटर है, अब पीछे जाना पड़ेगा थोड़ी देर सोचने के लिए, है ना. अब समझ नहीं आ रहा ना, वाई? बिकॉज सर मैनेजमेंट को हमेशा बहुत ही सब्जेक्टिवली असेस करा जाता है. हम क्या क्या चीजें देखें एक मैनेजमेंट में जिससे पता चले कि ये मैनेजमेंट बेटर है कि वो मैनेजमेंट बेटर है, वो पूरा बताएं. ना सिर्फ तू मैनेजमेंट एनालिसिस करना सीखेगा, बल्कि तू एक प्रॉपर रिपोर्ट भी बना पाएगा विच विल बी पार्ट ऑफ योर रेज्यूम. इट विल एड अ ब्राउनी पॉइंट इन योर रेज्यूम, आई एम नॉट किडिंग. ठीक है. दूसरी चीज, हमारी एक बेसिक इक्विटी रिसर्च की प्लेलिस्ट है, आप वो भी देखो. ठीक है, कुछ बेहतर आइडिया मिलेगा. एक चीज जो है, जो इसके अलावा भी और बहुत सारे चैनल्स हैं, आप सब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. जो मैं आपको दे सकता हूं वो मैं दे रहा हूं, ठीक है. इसके अलावा हमारे है ना एक वीकली बाजार टॉक करके, हर संडे मेरा एक टॉक आता है. पिछले कुछ 30-40 हफ्तों से हम रेगुलर एवरी संडे आई एम शोइंग अप, राइट. यार ये जो है ना भाई, ये जेम्स हैं सारे के सारे. मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट इसके अंदर तेरे को एनुअल रिपोर्ट कैसे रीड करना है, कॉन कॉल कैसे पढ़ना है, कितना कॉन कॉल पढ़ना है,
हॉस्पिटल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर, ये सेक्टर, वो सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज, कंपनी स्पेसिफिक नॉलेज, किसी कंपनी को कोई न्यूज आई अभी, जैसे आईएक्स पिछले हफ्ते 30% गिरा है ना, याद है आप लोगों को? आईएक्स 30% से डाउन हुआ है ना, उसके ऊपर 1 घंटे का टॉक था। अब अगर आप कहीं भी देखोगे, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अगर आप जाके देखोगे, तो एक कंटेंट क्रिएटर कंटेंट कैसा बनाएगा? 15 मिनट का वीडियो बनाएगा ताकि वायरलिटी मिल जाए। What we have discussed over this is that how should we analyze the news? How should we connect one dot to another? राइट, कि अगर ये हुआ है तो इसके कारण वैल्यूएशन पे कैसे इंपैक्ट हो रहा है। लोगों ने ऐसा, मतलब एक कागज के टुकड़े ने 6,000 करोड़ रुपए गायब कर दिए मार्केट से ना, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आए, 6,000 करोड़ रुपए स्वाहा, है ना। तो वो सब चीजें आपको वीकली बाजार टॉक में सीखने को मिलेंगी ब्रो। इसमें प्लेलिस्ट के अंदर एक और हमारी प्लेलिस्ट है, 1 पेजर प्लेलिस्ट। समझ कि अगर किसी कंपनी का तेरे को एक 1 पेज समरी बनानी है, कि 1 पेज के अंदर ही उस कंपनी के सारे मेट्रिक आपको रिपोर्ट करने हैं, तो वो कौन कौन से मेट्रिक है, मैं कैसे कैसे रिपोर्ट करूंगा। एंड अगेन, ना सिर्फ तू थ्योरी सीखेगा, बल्कि एक्सेल के अंदर खुद बनाएगा किसी भी कंपनी की। ठीक है, इसके अलावा और क्या है सर जो मैं कर सकता हूं आगे आने वाले टाइम में? रीड, start with reading 1 con call every day, but make a habit of reading 2 to 3 con calls every day. सर ये कॉन कॉल्स क्या होते हैं, आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेना एक बार। और अभी तो क्या, अभी तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, द रिजल्ट्स आर कमिंग एवरी अदर डे, राइट, एंड कॉन कॉल मीटिंग्स आर हैपनिंग एवरी अदर डे, राइट। आपको रोज नए कॉन कॉल्स पढ़ना चाहिए, 2 से 3। अगर आप कजारिया सीमेंट, कजारिया सेरेमिक का, आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त 23 का, आई कुड बी रॉन्ग, 23 और 24 होगा, नंबर भी आगे पीछे हो सकता है। वो सिर्फ एक कॉन कॉल अगर तू पढ़ लेगा ना, तेरे को सेरेमिक इंडस्ट्री का पूरा लेआउट समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। समझना ब्रो, डायनामिज्म का ही खेल है। आपको रोज अगले 40 साल तक बैठ के ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनानी है, इसीलिए आप यहां पर बैठे हो आज, है ना। आपको डायनेमिक एनवायरनमेंट चाहिए कि सर क्या कैपिटल मार्केट में सबसे नजदीक रहने का प्रोफाइल है ये। रोज तू कैपिटल मार्केट में रहेगा डेली। और बताऊं एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस चीज का? वो एडवांटेज जो एक ऑडिटर कैरी करता है पूरी लाइफ, एक टैक्स एक्सपर्ट कैरी करता है पूरी लाइफ, जो प्रैक्टिस करता है, वो ये है कि यहां पर, जैसे वहां पर हमारे यहां पर इंदौर में एक बहुत पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एम मेहता सर, मनमोहन मेहता जी, है ना। एंड ही विज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीपक सर कमेंट में लिख के बताएंगे कि शायद उनको ऑनररी मेंबरशिप मिली थी सीए ने, जो पहली बार कुछ लोगों को स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, तो कुछ लोगों को ऑनररी, उसमें शायद वो थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही वॉज फंक्शनल टिल द एज ऑफ 93-94। वो 93 ईयर्स की एज तक उन्होंने एनुअल रिपोर्ट साइन करी है, ऑडिट रिपोर्ट साइन करी ना, अपनी पूरी क्वालिफिकेशन के साथ। सर इक्विटी रिसर्च में ऐसा होगा क्या? अगर 20-25 साल बाद मान लो मेरे को छोड़ना है और मेरे को मेरे गांव जाना है, तो मैं कर सकता हूं ब्रो। इक्विटी रिसर्च एक ऐसा प्रोफाइल है जहां पर तेरे 24 घंटे तेरे आसपास, ऑल योर सराउंडिंग्स विल बी टॉकिंग अबाउट मनी 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 मनी, मार्केट्स 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 मार्केट्स, राइट। एंड इस पॉइंट पे यू आर नाउ विटनेसिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल, नॉट एज अ रिटेलर बट एज अ मार्केट इंटरमीडिएटरी। आपको समझ में आएगा कि अगले 10-15 साल अगर आपने मार्केट्स में निकाले, तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्शन के टाइम पर जनता कैसे बिहेव करती है, हाउ द पब्लिक बिहेव व्हेन वी लूज इलेक्शन, व्हेन वी विन इलेक्शन, व्हेन अ वॉर अकर्स, राइट, व्हेन एनी इंटरनेशनल कैलामिटी हैपेंस, व्हेन यूएस में कुछ हो जाता है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि जनता कैसे बिहेव करती है, यही मूल मंत्र है पैसा कमाने का। वेल्थ बिल्डिंग अगर आपको करना है, समझना, बिजनेस में, तो आप ये देखो कि जनता कैसा बिहेव कर रही है, उसको समझो और वो प्रोडक्ट बेच दो। अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है, तो आप ये एनालाइज करो दैट ऑन विच डायरेक्शन दे आर बिहेविंग, एंड डू एग्जैक्टली अपोजिट एंड यू विल मिंट मनी, राइट ब्रो। इक्विटी रिसर्च में यू विल बी नोन
ठीक है, आपका काम ही होगा टू मेक मनी फॉर अदर्स, यू नो हाउ टू मेक मनी विथ मनी, है ना। उसके लिए कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, इट इज सच अ ब्यूटिफुल प्रोफाइल। आप खुद सोचना, आपके पास जो भी लिमिटेड टाइम है उसके अंदर, क्योंकि मैं बताऊं आपको क्यों नहीं बता रहा हूं, सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कवर करो ना प्लीज। यार मेरा है ना, मेरा कभी ऑब्जेक्टिव वैसा नहीं रहता कि मैं आया आपको खुश करके चला गया यहां से ना, कि चलो अपन ने एक शाम बर्बाद कर दी 1.5 घंटा, है ना, तो मैं आके यहाँ आपको फैंसी फैंसी पीपीटीज बता के जाता, वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। आप 130 लोग बैठे हो ना, आप में से 3 लोगों ने भी अगर जो मैंने बोला है ये चीजों को इंप्लीमेंट भी कर दिया ना, आपने सिर्फ यूट्यूब चैनल ही जाके देख लिया वैल्यूएशन स्कूल का, शिद्दत के साथ उसकी सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दी अगले 2 महीने में, ठीक है, देर आर हाई चांसेस दैट यूल बी एबल टू मेक दैट, कन्वर्ट दैट थिंग, ट्रस्ट मी। एंड इन सब चीजों के साथ एक बात ध्यान रखना, अपनी लिंक्डइन की शोशाबाजी कम मत होने देना बिल्कुल भी। बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है ब्रो लिंक्डइन, है ना। मैं तो पूरा लिंक्डइन से ही बनाऊं, बट मेरे स्टूडेंट्स भी जितने बन रहे हैं वो सब लिंक्डइन से ही बन रहे हैं, राइट। पीपल आर ऑप्टिंग फॉर अ 100 डे चैलेंज। आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं उसमें डेफिनेटली, बट उसमें मेजॉरिटी लोग टीयर 2 ग्रेजुएट टाउन के, जिनको लिखना भी नहीं आती थी अंग्रेजी। आज 100 दिन लगातार वो लिख रहे हैं। सर कैसे लिख रहे हैं वो भी मैंने बताया था एक वीडियो में, कि आपको कैसे लिखना है। मैंने उनको बोला कि कोई भी एक सेक्टर पकड़ो, जैसे सीमेंट, है ना, आपने पकड़ लिया। अब सीमेंट के ऊपर तेरे को 100 दिन लिखना है। सर क्या लिखूं 100 दिन, मेरे को तो सीमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं आता। तो रोज पढ़, समझ, कुछ भी पढ़। सर क्या पढ़ू, कौन कॉल पढ़ ले, कोई एक नया कंसेप्ट समझ में आया उसको लिख दे। पहले दिन डिफिकल्टी होती है, दूसरे दिन और डिफिकल्टी होती है, तीसरे दिन और ज्यादा होती होगी, क्योंकि अब टाइम फिर वही कंटाल चीज। बट क्या हुआ पता है, 100 नहीं, हाँ 170 लोगों ने कंप्लीट करा। मैंने किताब भेजी है सब लोगों को जिन्होंने 100 डे चैलेंज कंप्लीट किया, साइन कर करके। 170 प्लस किताबें मैंने साइन करी थी। तो लोग कर रहे हैं ना, उन लोगों ने अपने रेज्यूम में लिखा है ये चीज, दैट वी हैव कवर्ड सीमेंट सेक्टर ऑन लिंक्डइन एज अ 100 डे चैलेंज। अब तू उससे बात कर ले सीमेंट सेक्टर पे 100 दिन के बाद, भीड़ ले जाके जा, समझ में आएगा वो क्या क्या चीज बन के आया 100 डेज के बाद। ब्रो दिक्कत वही है, अगर समझना, मैं तो अभी चला जाऊंगा, मेरी 1 घंटे में क्लास है, ठीक है। आई डोंट इवन नो यू, आप लोग कौन हो, कहाँ से हो। मैं मेरी लाइफ में कल से बिजी हो जाऊंगा, दीपक सर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, ठीक है। आप अगले 2 सेशंस और देखोगे, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। डिसीजन मेकिंग आपको करनी है, जो भी फ्रूट मिलेगा ना उसका, वो आप लेके जाओगे, ठीक है। फोमो में गलत नौकरी मत लेना भाई। 6 महीने घर पे बैठ के प्रिपरेशन करने से तू लूजर नहीं बन जाएगा, इतना रिस्क तो लेना पड़ता है भाई इसमें। अगर इतना रिस्क नहीं ले रहा है ना, तो मत आना फाइनेंस में। मजाक नहीं करो, मजाक। बहुत सारे अगर एआईआर है ना, तो पीएसयूज वाले लाइन लगा देंगे तेरे लिए नौकरी की। मेरे को पता है ना, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सीएल, पावर ग्रिड, ढेरों नौकरियां मिल जाएंगी। आराम से पीएसयू में जा, मस्त पैकेज मिलेगा, एजीएम वेजीएम की पोजीशन मिलेगी, लोग सर बोल के सलाम मारेंगे, जीवन सेट रहेगा। समझ रहे हो, थ्रिल नहीं है वहां पर कुछ भी, है ना, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, सब बाय द बुक चलेगा। यू विल बी लिविंग अ वेरी हाई क्वालिटी लाइफ, जो टॉप 1% को नसीब होती है। बट अगर वो करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो फिर दिस इज द ओनली अल्टरनेटिव। व्हाई हैव नॉट स्पोक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कारण क्या है पता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ना कुछ बहुत स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे वैल्यूएशन और फाइनेंशियल मॉडलिंग। इन दोनों स्किल्स को कम समय में मास्टर करना, इट्स अ वेरी ट्रिकी टास्क। तो अनलेस अदरवाइज तूने वैल्यूएशन में बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट नहीं करा है ड्यूरिंग योर प्रेप, तो यू कैन नॉट मेक योर करियर इनटू दैट। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, लेट मी बी वेरी ब्लंट विथ यू। आपको अगर लग रहा है ना, तो आप लास्ट ईयर के जो 5-7 सालों में रैंकर्स आए उनमें देख लो कितने लोग आज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहे हैं। यू विल सी दैट नन ऑफ देम आर वर्किंग, या वेरी फ्यू ऑफ देम आर वर्किंग। दोज आर वर्किंग, दे हैव पुट एक्स्ट्रा एफर्ट अपार्ट फ्रॉम द रैंक। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि कंपटीशन में सीधे सामने खड़ा है एमबीए वाला। अब एक एमबीए स्टूडेंट की कहानी सुनो। वो एमबीए कॉलेज में जाता है, वहां पर फाइनेंस क्लब है, वहां कंसल्टिंग क्लब है, ठीक है। वहां पर उसको हर कभी टीचर आके खड़ा करके प्रेजेंटेशन करने बोल देता है ना। तो वो खुल चुका है पूरी तरीके से, वो पहले दिन से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहा है। वो केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कोर्सेरा पे मल्टीपल कोर्सेज कर रहा है। अश्वथ दामोदरन सर की यूट्यूब प्लेलिस्ट है, वाईटी प्लेलिस्ट है दामोदरन सर की, नाम सर्च करना आप बस इनका ही, इट्स इन 100% इंग्लिश, ठीक है।
वो देख रहा है। आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना है, मेरी फ्री प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वैल्यूएशन स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, वहां से सीख सकते हो। कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सेल मैंने सिखा दिया है उधर। कंसेप्ट दिमाग आप लगाना, मेरे बह मत जाना उसके अंदर, समझ रहे हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूज योर ओन कंसाइज। अगर इसमें एफर्ट डालना है तो जा सकता है ब्रो, बट ये देखना कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है। मैं मना नहीं कर रहा हूं तेरे को कि तू फाइट मत मार, बट मेरा ये बोलना है यार, पता है कौन सी फाइट लड़नी है ना, प्लेग्राउंड डिसाइड करना भी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है कि लड़ना किस प्लेग्राउंड में। जहां पर मुझे पता है कि मेरे लिए ड्रॉबैक है ना, मेरे लिए ड्रॉबैक है मतलब, आज तू अगर एक हेज फंड में लग गया, एक पीई कंपनी में लग गया, प्राइवेट इक्विटी में, तो घर वालों को बताने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, सबको बताने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट अंदर से सिर्फ आप ही जानते हो आप वहां पर क्या काम कर रहे हो, है ना। मैंने काफी सारे लोगों से बात करी है, वो बोलते हैं कि जो टीयर 1 फर्म्स भी होती है, मैकेंजी तो हायर ही नहीं करती है, बीसीजी हायर करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। तो बीसीजी भी बोले पार्थ वो काम नहीं करवाती उनसे जो वो एमबीए हायर से करवाती है। मेरा मतलब बोले उनसे ज्यादा काम थोड़ा बैक ऑफिस टाइप का कराया जाता है, मतलब डेस्क जॉब ज्यादा कराया जाता है स्टार्टिंग में। दे डोंट ट्रस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट सो इजीली। इट्स जस्ट दैट वी हैव नेवर डिस्प्लेड आवर नॉलेज टू देम, दैट्स इट। आप सोचो, एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की पोजीशन पे एक बंदा हायर हुआ, एंड वो इंजीनियर है ना, और उसको 4 अलग अलग फैमिली ऑफिसेज ने हायर करा, इंटरव्यू कॉल करा। आई वाज शॉक्ड कि यार एक इंजीनियर को 4 इंटरव्यू कॉल्स कैसे आ रहे हैं, बिकॉज सर दे प्रेफर्ड इंजीनियर्स टू हायर इवन फॉर द फाइनेंस रोल्स। व्हाई? बिकॉज अगेन द थिंकिंग। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चीजें इधर उधर अनस्ट्रक्चर्ड ही रहती हैं, बट यार यहां तक पहुंचनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसको थोड़ा आप समराइज करोगे, आपने जो बोला है, मैंने यही बोला है कि अपना आप अगर फोकस डाल सकते हो अगले 2 ढाई महीने 3 महीने तक, फॉर नेक्स्ट 2 3 मंथ्स, राइट, जस्ट गायब हो जाओ फिर से 2 ढाई महीने के लिए। ट्रस्ट मी, पहले नहीं कर पाए ना, अब कर लो, ये आखिरी बार मौका मिल रहा है ब्रो। इसके बाद लाइफ में कभी 2 महीने बैठ के पढ़ नहीं पाओगे जीवन में। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग। अब खुद सोचो, वंस यू विल बी ऑन अ जॉब, डू यू थिंक सो दैट यू विल गेट अ 2 month ऑफ ब्रेक जस्ट टू स्टडी? यू वोंट। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी जब आप खुद को अपस्किल कर सकते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विथ 100% अटेंशन। इसके बाद लाइफ में हर चीज जॉब के साथ चलेगी, बच्चों के साथ चलेगी, बीवी के साथ चलेगी, समझ रहे हो? थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, लाइफ विल मूव फॉरवर्ड। दिस वुड बी द लास्ट 2 और 3 मंथ्स। अगर तेरे में कलेजा है, करेज है, ठीक है, और तू रेडी है सैक्रिफाइस करने के लिए, हो सकता है मिल जाए अगले 2 महीने में, मना नहीं कर रहा हूं, बट देर आर गुड चांसेस दैट यू विल नॉट गेट अ जॉब फॉर नेक्स्ट 6 months ऑल्सो इन फाइनेंस। इट्स नॉट कोई गारंटी थोड़ा ना है चार्टर्ड अकाउंट। वो तो भाई भला मानो, समझ रहे हो आप, कि सीए इंस्टीट्यूट इतना एफर्ट डाल के कैंपस लगवा भी रहा है, सीएफए में तो वो भी नहीं है। आदमी एक एक सवा सवा लाख रुपए एग्जाम फीस भर रहा है, कोई कैंपस सपोर्ट नहीं है। आप यू आर ऑन योर ओन। हर जगह यही होता है। आपको क्या लगता है हार्वर्ड कैंपस लगवाता है? नहीं। आदमी अपनी अपस्किलिंग करता है, उसको जिस डायरेक्शन में जाना होता है वो उस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? नंबर 1, क्या आपको डेली बेसिस पे कॉन कॉल्स पढ़ना चाहिए? डेली बेसिस। सर ये कॉन कॉल की रीडिंग कैसे करूंगा? मैंने यूट्यूब चैनल पे बताया। मैं नेट आपको ये बोल रहा हूं कि आप जाओ और मेरे यूट्यूब चैनल पे जितनी प्लेलिस्ट है ना, उसमें से जहां से स्टार्ट करना हो, जो जो टॉपिक पढ़ने में अच्छा लग जाए, जो फोटो देखने में अच्छी लग जाए, उस पर क्लिक करके स्टार्ट रीडिंग इट। मेरे को कोई पैसा नहीं मिलेगा ब्रो ये काम करके, समझ लो, आपको वहां रिकमेंड करके। आपको ऐसा लग रहा है मैं लाइक्स और व्यूज के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू ऑल्सो नो दैट, राइट? आई एम सेइंग दिस फॉर योर ओन गुड। बाकी तो भाई आप सब लोग एडल्ट हो, है ना, एंड यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजंस यू विल मेक इन योर लाइफ, है ना। तो आप खुद ही जिम्मेदार हो। यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है, समझना। इट इज योर जर्नी, राइट? तो आप ही 100। हाउ कैन यू कनेक्ट विथ मी? यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन। वन ऑन वन यार ब्रो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पूरा टाइम पैक्ड रहता है, पूरा टाइम पैक्ड रहता है, ट्रस्ट मी। मतलब आज अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मेरे कॉल्स कैंसिल हुए स्टूडेंट्स के साथ, जो क्वेरी कॉल्स होते हैं, जो डाउट सेशंस होते हैं उसमें, है ना। सो अगेन नॉट अ कंप्लेन, आई एम वेरी ग्लैड कि अगर, क्योंकि उनकी तो रोज की डाउट है, मेरे को पता है क्या डाउट है,
फालतू की चीजें हो तो, ठीक है, एक ही चीज 5 बार बता के परेशान हो गया हूं मैं। तो आई वॉज वेरी ग्लैड व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दीपक सर कि आपको आके बच्चों से बात करनी है, क्योंकि मुझे पता था कि आप सब लोग फ्रेशमैन हो, एंड अगर किसी एक के भी दिमाग में मेरी बात हिट हो गई ना, तो उसका करियर ट्रेजेक्टरी पूरा घूम जाएगा, है ना। मैं आपको बताता हूं, आप लोगों के मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूं। मेरे पास ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं, एक नहीं है 2 हैं, जो जोमैटो पे डिलीवरी बॉय का काम करते थे और वो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बने हैं। उन्होंने अपने मोबाइल में क्लासेस लेके डिलीवरी पीरियड जब वेट करते हैं ना रेस्टोरेंट्स के बाहर ऑर्डर मिलने के दौरान, उस दौरान अपनी क्लासेस देखी हैं। उन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं बना पाए वो, क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं था। मैंने अरेंज करा किसी दूसरे स्टूडेंट का बोल के कि यार तू उसी एरिया में अगर है तो तुम कोई उसको मदद कर दो जाके, तब उसने रिपोर्ट बनाई है, एंड ही नेल्ड इट। तो वो कर सकता है, तो तू तो टेबल कुर्सी पे बैठ के देख रहा है आज, है ना। मम्मी चाय पूछ के गई होगी 2 बार कि कुछ खा ले, टाइम हो गया है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, राइट। तो वी आर तो वेरी प्रिविलेज ब्रो, हमारे पास डिग्री है। और तुम एक बात बताऊं, बिग फोर में जाना सपना थोड़ा ना हो सकता है किसी का। आपका सपना है क्या बिग फोर में जाना? भाई कोई नहीं लेगा तो बिग फोर तो ले ही लेगा, समझ रहे हो। तो होलसेल की दुकान खोल के बैठे हैं वो, सीए के अलावा और किसको लेंगे? 6 महीने ट्राई तो मार ले ब्रो, तेरा रोटी कपड़ा तो फिक्स है, कोई टेंशन मत ले उसका। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है ना, ये दीपक सर ने बताया था हमको कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो तो भूखे तो नहीं मरोगे, ये बात की तो गारंटी है, ठीक है। तो जब पता है भूखे नहीं मरना है, अपना कोई बड़ा नुकसान नहीं है, सिर्फ 6 महीने का सट्टा खेलना है। इमेजिन कर ले एज इफ तू फेल हो गया एक अटेम्प्ट, और क्या। अभी हो जाता तो बैठ के पढ़ता ही ना घर पे, बस वही चीज रिपीट करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप लोगों को एक कुछ इंसाइट मिली हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अगर अभी मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करेंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा थोड़ी देर बाद ही, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। So, यस yes, सर, Parth. यस Thank सर। you very much for giving a reality check. Actually, this was more of a reality check, and may I request all the candidates to just put up a heartfelt feedback on the chat box so that he can come to know that whether his time was worth it or not. थैंक यू सो मच। So, Parth, can't thank you enough. Even I was a keen listener and I was learning. Because anyway, see, now we all are colleagues and you are excelling in something, you are learning something, you're unlearning something and making us aware of it. So even I was a student trying to understand everything which was going through the world. And एब्सोल्युटली सर। I hope these kids would have got an idea that yes, if you want to pursue this, you have to fall in love with it. And I think the most important point you said is these are these months where you can take this chance. Because once you यू get कांट into the आफ्टर दैट। grind of a job and that thing, then it's not a possibility to come back to it. Then the commitments of life and everything will pull you back. So, real good insights. And I think most of them now will understand that they cannot achieve all these things through a single day master class. I think these things नो, also have been नो quite सिंगल डे मास्टर oversold. क्लास, नो वीकली मास्टर क्लासेस। 3 घंटे के अंदर आपको एफडीडी सिखा रहे हैं 3 घंटे में, मतलब मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, They बट इट have a इज नॉट financial पॉसिबल। modeling class, my friend. They have a financial modeling class नहीं for नहीं, मतलब आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट सर, बट हाँ ठीक है, यानी वो पॉसिबल नहीं है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, वो आपको 2 मिनट में खत्म कर देगा। 2 सवाल पूछेगा इंटरव्यू में, यूल बी फिनिश्ड। किसी ने बहुत अच्छा पूछा है, एफडीडी रोल्स के लिए कैन वी टारगेट? यू कैन एब्सोल्युटली टारगेट विथ ऑल योर एनर्जी एंड एफर्ट्स। एफडीडी रोल इज अ वेरी गुड रोल। अगर आप एफडीडी के लिए टारगेट करते हो तो वो आपको फ्यूचर में डायरेक्शन दे सकता है टुवर्ड्स इक्विटी रिसर्च। आई हैव सीन प्रैक्टिकल केसेस जहां पर बच्चे एफडीडी में था और वो इक्विटी रिसर्च में मूव हुआ है। वॉट अबाउट वैल्यूएशन रोल? एज आई सेड पलक, अगर आप ऑलरेडी वैल्यूएशन, क्योंकि क्या है ना, वैल्यूएशन इज एन स्किल। डीसीएफ का फॉर्मूला वैल्यूएशन नहीं होता है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट करना है ना, उसकी सेंसिटिविटी का एनालिसिस करना है, वेरियस सिनेरियोज बनाने, आपको हेल्थ चेक करना है अपने वैल्यूएशन का, क्योंकि वैल्यूएशन अपसर्ट तो नहीं हो रहे। तो इट इज अ प्रोसेस। आपको कम से कम 3 से 4 महीने का समय चाहिए होगा अगर वैल्यूएशन को ढंग से समझना है तो, इवन इफ यू आर यूजिंग द फ्री रिसोर्सेस, ठीक है। so ये यस सर, प्लीज प्लीज यू कैन। आई जस्ट वो yeah. थोड़ा So क्वेश्चन देख के मैं ऑटोमेटिकली आंसर करने लग जाता हूँ correct. जूम I में, think इसलिए। CA inter students are also asking. Himesh has a question that the CA inter student
looking for articleship can make a career in it. Himesh, you would like to take the question? हिमेश बिल्कुल, यस 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 फॉर श्योर. देख ब्रो, क्या होता है ना, दोज हु आर सीए इंटर स्टूडेंट, आई नो दैट 99% ऑफ द प्लेसेस वेयर यू कैन डू आर्टिकलशिप are not offering you the valuation or finance kind of a roles, right? Like for example, but there are few companies which do. Like for example, Felix Advisory करके there is this company, FELIX, Felix, है ना? श्वेता पारेख सर है, he's a chartered accountant, वो उनका कंपनी है, एंड it's a CA firm, Felix Advisory, ठीक है, बट दे डोंट डू द CA प्रैक्टिस, एंड वो कोर वैल्यूएशंस में है, वो ESG प्रैक्टिस में है, and he's one of the top authorities in India. Transaction Square करके है, गिरीश वनवारी सर, he's also a chartered accountant, one of the top M&A firms, right? And I feel Grant Thornton भी शायद अभी वैल्यूएशन में देता है, तो आप वहां पर जरूर ट्राई करो. छोटी छोटी फर्म्स तो फिर है ही ब्रो, ठीक है. बट एक बात ध्यान रखना यार, अगर आप इंटर में हो ना अभी, तो ये टाइम वेस्ट मत करना भाई. मतलब पहले, मतलब मैं क्यों बता रहा हूं पता है, सब फोमो क्रिएट होगा कि मेरी, और यार कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, समझ रहा है? मतलब डेफिनेटली तेरे को कोचिंग भी कर रहा है, तू आर्टिकलशिप भी कर रहा है, पर्सनल काम भी है, उसके बीच में कहीं गैप अगर बढ़ाना है तो गैप तो बढ़ाना पड़ेगा. मतलब समझ रहे, अगर नहीं करेगा ना तो फिर रिग्रेट होगा, फिर ऐसे कोई सेशन को खोज रहा होगा सीए बनने के बाद, कि कोई ऐसा सेशन में आके बता दे, कोई कोई रिच स्कीम दे दे कि कैसे इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना है, वैल्यूएशन में बनाना है. तो अगर देखो ना, क्योंकि आप अगर इंटर में हो, ठीक है, और ये सब लोग फाइनल में, तो ये लोग तो आज इसीलिए बैठे हैं, तो इससे तो आपको सबक लेना चाहिए ब्रो, कि मेरी ये हालत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो आपको कंटिन्यूअसली काम करना है अगले 2-3 साल तक, जब जितना भी टाइम आपको मिलता है. सर मैं क्या करूं? मैं तेरे को बोल रहा हूं ना, शुरुआत के लिए अगर तू सिर्फ कॉन कॉल रीडिंग ही पढ़ना शुरू कर देगा, ट्विटर पे जाके अच्छे लोगों को फॉलो कर जो मार्केट्स के ऊपर अपडेट देते हैं, समझ तो सही चीजों को क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का एनालिसिस कैसे होता है. अगर तेरे को पता है, क्योंकि कुछ भी नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी का एनालिसिस जैसे फॉर एग्जांपल एक करने वाली चीज है, तेरे को 10-15 टर्म्स पता होना चाहिए, इसके कम ज्यादा होने से क्या होता है, दैट्स इट. अगर वो मैक्रो इकोनॉमिक के 10-15 टर्म्स पता, यू कैन इजीली एनालाइज अ मॉनेटरी पॉलिसी, प्रिपेयर अ नोट ऑन इट एंड पब्लिश इट ऑन लिंक्डइन. यार कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है? ब्लड इट इज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड द टाइम वर्किंग फॉर लास्ट 3 years, राइट? हर चीज डॉक्यूमेंट हो रही है. I have shortlisted for valuation and FDD roles for campus. Can you help me? Given I need 2-3 months to get a hold. Campus is in 20 days. देखो simple सी बात है. Please understand. क्या होता है ना? Just add one thing. I'll just add Yes one sir, thing. please. Yes These sir, please. shortlistings would be not for pure FDD roles. These would be offshore accounting units of Big Four. And they will Okay. be having some FDD happening in India at the back end. Apurva, Got it. can you confirm this to me? कौन सी कंपनी है? Hi, sir. Hello. Yeah, I'm correct. It was an PwC. FDD role at the back end of PwC. मतलब वो SDD. SDCs के अंदर है, उनके जो सर्विस डिलीवरी सेंटर्स है वहां पर FDD करो. Correct. So what is Okay. happening? You would be aware of the working at the back end part. No, no, it is not Just give them flavorful. the reality check. Don't go. That is नहीं नहीं, why. don't go there. Don't go there. मैं भी मैंने जो लास्ट नौकरी ली थी वो SDC में ली थी, और इसलिए ली थी क्योंकि मेरे को साथ में कोचिंग करनी थी मेरी, समझ लो. तो वो ऐसी जगह जहां पर आपको आराम करना है, तो आप SDC में जाओ. सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे लैपटॉप बंद करा, मंडे तक कोई पूछने वाला नहीं है. बट द आइडिया इज वंस यू गेट इन ना, वो आपको आराम करने की इतनी आदत लगवा देंगे सर, ये सही बात है. HSBC और बड़ी बड़ी कंपनीज भी, MNC बिजनेसेस, दे मेक यू सो कंफर्टेबल दैट यू विल नॉट बी एबल टू लीव देम. आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाओगे, We है ना? जैसे HSBC की तो स्ट्रैटेजी होती है, दे पे यू सो वेल कि आप स्विच ही ना कर पाओ जॉब There कहीं is a पर very भी. good term nowadays for it, na? Golden handcuff. अच्छा, गोल्डन हैंडकफ, I've heard it for the Celebrated first terms time. nowadays. फिर अगर जैसे काफी सारे लोगों का था कि FDD रोल में जाना है, वेरी सिमिलर टू, वेरी वेरी सिमिलर टू यू नो इक्विटी रिसर्च रोल्स. कारण क्या होता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कब करना है, जब कोई बोलता है, समझना, एक केस बनाते हैं, क्या एक HNI है जिसको 1500-2000 करोड़ रुपए, 1500-2000 करोड़ रुपीस ही वांट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, इन अ पर्टिकुलर बिजनेस. कैन दैट HNI इन्वेस्टर हायर अ बिग फोर टू कंडक्ट अ ड्यू डिलिजेंस ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी? मैंने बिजनेस समझ लिया, तू ड्यू डिलिजेंस करके बता दे बस कि सब सही है क्या. सर अब ये ड्यू डिलिजेंस क्या हो गया? कंपनी के बारे में रेड फ्लैग एनालिसिस करना,
है ना. रेड फ्लैग एनालिसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर बिजनेस इज ड्यू डिलिजेंस. ऑडिट में और ड्यू डिलिजेंस में ऑब्जेक्ट जो डिफरेंस होता है वो माइंडसेट का होता है. ऑडिट में आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लेके जाते हो, ड्यू डिलिजेंस में आप खोजी कुत्ता बन के जाते हो कि मेरे को तो कुछ खोज के निकालना ही है इसमें. रेड फ्लैग मतलब आई हैव टू जस्टिफाई माई फीस, राइट, कि कुछ ना कुछ देखो हमने ये गलती निकाली है कंपनी में. तो अगर आपको समझना एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, तो देर इज दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट. वो इंदौर बेस्ड है बट बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं. उनका नाम है नितिन मंगल. ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ वेरी, मतलब इंडिया में इक्विटी रिसर्च की अथॉरिटी है ब्रो. नितिन मंगल, वो कभी भी किसी कंपनी को लेके बात नहीं करेगा बट उनके जितने वीडियोस है आप सब देखना यूट्यूब पे. नितिन मंगल फॉरेंसिक रिसर्च का गुरु है पूरी इंडिया में. वर्ल्ड में वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है फॉरेंसिक एनालिसिस में. किसी कंपनी में क्या गड़बड़ हो रही है, क्या रेड फ्लैग्स हैं, अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस कहां पर हो रहे हैं. नितिन मंगल सर के जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, सो यू हैव टू पे हिम 80,000 90,000 रुपीज ताकि वो आप उनकी रिसर्च पढ़ सको. उनकी रिसर्च कभी पब्लिक में इसलिए नहीं आती है बिकॉज द मोमेंट उसने किसी कंपनी पे रिसर्च कर दी है ना, पहले भी ऐसा हुआ है, कंपनी की बत्ती बैठ गई थी पूरी तरीके से. आप कभी न्यूज में जाके पढ़ना नितिन मंगल प्लस इंडिया बुल्स. नितिन मंगल प्लस इंडिया बुल्स करके किसी जमाने में कंपनी हुआ करती थी. नितिन मंगल सर किसी इक्विटी रिसर्च हाउस में थे एंड उन्होंने सेल रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी. एंड फिर इंडिया बुल्स ने क्या करा था, वाई आई एम सेइंग दिस, कि अगर एफडीटी पे जाना है तो फिर लर्न फ्रॉम द अथॉरिटी डायरेक्टली. सर मैं कैसे सीखूं उनसे, उनका तो कोई कोर्स नहीं है. जहां से जो मिल रहा है सब समेट ले. यूट्यूब पे उसने जहां च भी बोल दिया ना वो सुन लेना. बहुत नौ ज्ञान में तेरे को डायरेक्शन चाहिए है. अच्छा रेवेन्यू में ये भी देखा जाता है. अच्छा रेवेन्यू जैसे उन्होंने बताया कि एक कंप्यूटर कंपनी को एनालाइज कर एक टेक कंपनी को एनालाइज कर रहे थे इंडिया की. एंड उसमें उन्होंने क्या करा, टोटल कंप्यूटर की जो कॉस्ट है, मतलब जो असेट्स हैं लैपटॉप के, उसको डिवाइड करके देखा नंबर ऑफ इंप्लॉइज से. तो उनको समझ में आया कि इसकी जो पीयर कंपनीज हैं उनका ये फिगर आता है पर इंप्लॉय कंप्यूटर कॉस्ट इज 2 लाख रुपीज और मेरी कंपनी का आ रहा है 18 लाख रुपए, राइट. तो डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग. तू क्या दे रहा है भाई 18 लाख में, मतलब क्या 5-7 मैक मशीन एक साथ लगा के दे रहा है, क्या कर रहा है ऐसा कि 18 लाख रुपए पर इंप्लॉय कॉस्ट पड़ रही है. समझना क्या होता है ना, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं ना, या आपको पता नहीं चलेगा ना ऐसा हो सकता है, तब तक ह्यूमन ब्रेन हर उस चीज को नेग्लेक्ट कर देता है, अवॉइड कर देता है. मतलब बोलने की बात है कि जब तक सचिन ने 200 नहीं मारे थे एक दिन में वनडे में, क्रिकेट तो उससे 200 साल पहले से चल रहा है, 150 साल पुराना गेम था, बट 150 साल तक किसी ने भी 200 नहीं मारे ना सिंगल डे में. तो एवरीवन फेल्ट इट इज नॉट पॉसिबल. एक बार सचिन ने ग्वालियर में 200 मार दिया, उसके बाद एवरी अदर अल्टरनेटिव ईयर वी आर सीइंग अ 200 कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक बार तेरे को पता चल गया ना कि अच्छा बैलेंस शीट में ये देखते हैं, ट्रस्ट मी, तू 4 चीजें और एड ऑन कर देगा. दैट इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क ब्रो. क्योंकि तेरे पास कलेक्टिव नॉलेज भी है ना 8 सब्जेक्ट का जो तू पढ़ के आया है, इतना एफर्ट डाला यार, बेसिक धंधे की समझ तो है. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर. आप प्लीज क्लोज कीजिए. Thank you very much, Parth. Can't thank you यस. enough. I'm short of words. But your reward for good work is always more work, so you might be required again after the next event. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो So मच. this session would be needed, and I would request all of you to send a request to Parth, connect with him, I and watch please his send it to YouTube me right videos. now. I'll accept it. Yeah. Yes, watch his YouTube videos. They are a public goods. They are available without monetization, so there is nothing as such. That's the beauty of what we do at Degree to Placements. Everything is for free. Okay. So thank you very much from across the country. Thank you very थैंक यू much. सो मच गाइस एंड आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा. डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, बट आई एम श्योर कोई डायरेक्शन आप लेके जाओगे यहाँ से. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच दीपक सर फॉर इनवाइटिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर. एंड आप बहुत प्रोग्रेस करो अपने करियर में, जल्दी से माँ बाप को और ज़्यादा प्राउड करो. ठीक है, और जो मारवाड़ीज हैं फिर वो शादी की तैयारी शुरू करो. ठीक है, चलो. हाँ, मतलब नौकरी लगने के बाद मारवाड़ी फैमिली में तो यही चलता है. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच Thank you very एंड much. थैंक्स गाइस. गुड इवनिंग. बाय बाय. Bye. थैंक यू. Thank you.
Thank you, guys. Thank you very much for being here, and I hope it added some value. The next session, which is planned up, is with Vaishali. Vaishali has been into EY consulting, and she's the chief of staff at Marico right now. She was a part of Vinita Singh's office at Sugar Cosmetics also. So you can interact with her day after tomorrow, and we'll go further accordingly. And then you will have Neha also speaking to you on 2nd. So tomorrow is a break, 1st and 2nd. Okay? Bring your friends. Bring your friends. That is what I would say. Thank you very much. Put your question, Apurva, in the WhatsApp group. I'll answer, beta. Okay? The invites will come to all of you. Okay? And if you all are you all there into WhatsApp groups? First of all, tell me. Into the D2P WhatsApp groups, are you there? Right now, 55 guys here. How many of you can give me a promise right now that you just put up a feedback of the session today? Because I end up sending so many of the requests and people don't come up. So just put up a small feedback that what kind of a session you had with Parth Ji. Put that feedback there in the WhatsApp group so that people come to know that what content we are discussing. Right now. Right now. You will not do it later, I know. Yeah, here is the group link. Here is the group link once again. Just a minute. Here is the WhatsApp group link. Share the feedback. People will come to know that what is happening. Trust me, getting time from Parth is not easy. Okay. So we'll have more sessions. Vaishali and Neha will take you through. Keep your questions ready. Thank you very much. Bye-bye. Do you allow me to close the chat? Or are you sharing the replies on the WhatsApp group?